Roll camera. This is Take That. Our guest today is Rajiv Shukla. तुम्हारा टाइम बाकी है भाई, पूछो ना, नर्वस मत हो। ये सिर्फ अखबारी सवाल है, तो आप बार बार वहीं घूम घूम के जा रहे हैं। तो मैं कह रहा हूँ कि हमने तुम्हें 20 उदाहरण दिए। Mr. Shukla, the pitch is set, the fielders are ready, time for you to bat. India will play against Pakistan in the Asian Cup, which is an organization being chaired by Mohsin Naqvi, who has constantly made hostile statements threatening the safety of Indian citizens. अमित शाह जी के लड़के क्रिकेट बोर्ड के अंदर बड़े ऊंचे पद पे हैं और बीजेपी कहती है वो परिवारवाद के खिलाफ है। तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है क्या धर्म को लेकर? और देखिए, राहुल गांधी कभी नहीं कहा एक भगवान राम नहीं। अभी उमर अब्दुल्ला जी ने कहा है कि हाँ, ये वोट चोरी का मुद्दा तभी उठाया जाता है जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस पार्टी हार जाए, इंडिया अलायंस हार जाए। In the last year, we've seen you meet everyone from Rishi Sunak, Sachin Tendulkar, Virat Kohli, Prince Edward, King Charles, Narayan Murthy. No, I think it's a misperception, misconception. It's not true. You can see me, but you love to see me with Sachin Tendulkar, Shah Rukh Khan, and other personalities. But don't you think your constituents would like to see you there? I was in Raipur, last month. Yeah. Did you see those photographs? Because you don't want to see them. What have you actually done to ensure that talent, not money or influence, decides who gets picked? So should I respond in Hindi or English? because यूपी वाले भी सुन ले। टिंकू सिंह के तो सिलेंडर ढोते उनके फादर, इतनी गरीबी में वो पला हुआ। इतने गरीब बच्चों को मौका मिला है, कुछ ना किसी का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ना एक का मनी इन्फ्लुएंस। टिंकू सिंह पैसा दे सकते। Why the women of this country they don't go and watch their games? Sir, because if the media is not covering it, The media is covering- if the BCCI doesn't prioritize it as a step forward, then for the girls in tier 3 BCCI has cities, prioritized. Matches are being telecast, everything is being done. तो ये कोई नई बात नहीं, उसको बेवजह सोशल मीडिया पे इशू बनाया हुआ है। ये शाहरुख खान इतने अच्छे दोस्त हैं आपके, कभी एक्टिंग का कुछ सोचा है? एक्टिंग क्या ऑफर है, लेकिन शाहरुख ने मुझे मना किया कि राजीव जी आपका काम नहीं है, आप अपना काम करिए, ये मुझे करने दो। This is Take That, where India's next generation puts its toughest questions to people in positions of power. Our guest today is someone who has had a ringside seat in both politics and cricket. Rajiv Shukla, Congress leader, MP and Vice President of the BCCI. He's been a seasoned journalist, political insider for decades, and in cricket he's seen everything from IPL's rise to its biggest controversies. In fact, he's once been likened to a tomato because he blends seamlessly into any setting, whether it's the park corridors of Delhi, the cricketing arena, or the glamorous world of Bollywood. But today, he's facing 10 students who aren't afraid to ask him, can politicians and cricket administrators really wear two hats? And has politics become too much about managing power, too little about delivering change? Here's how it works. Each student will get 2 4-minute shots and Mr. Shukla will respond to each student individually. Mr. Shukla, the pitch is set, the fielders are ready, time for you to bat. Thank you. Hello, Mr. Shukla. I'm Shivom. I'm an aspiring lawyer. And आज मेरे पास ये प्रश्न है आपके लिए। हाँ, शुक्ला जी, आप राजनीति और क्रिकेट के बीच में क्या संबंध देखते हैं? हमने वो क्लिप देखा है जिसके अंदर शरद पवार जी को रिकी पॉन्टिंग ने धक्का दे दिया। आपके हिसाब से क्या सिर्फ उन्हीं लोगों को क्रिकेट बोर्ड पे होना चाहिए जिन्हें क्रिकेट खेलनी आती है? क्या राजनीति और क्रिकेट को दूर रहना चाहिए? और अगर आप जयशाह जी का ही उदाहरण ले लें, उन्होंने परिवार के मायने रखते हुए इतनी कम उम्र पे इतना ऊंचा पद ले लिया है। आपके अनुसार जयशाह जी की अपॉइंटमेंट क्या परिवारवाद नहीं है? और क्या बीजेपी जो परिवारवाद के इतने खिलाफ हैं, उन्हें जयशाह जी को अपॉइंट नहीं करना चाहिए था? धन्यवाद। देखिए, मैं समझता हूँ कि क्या राजनीतिक या पॉलिटिशियन किसी दूसरे ग्रह से आए क्या? आर दे एलियंस? कल तुम ही पॉलिटिशियन, आज वकील हो, कल पॉलिटिशियन हो जाओगे। हाँ जी, बिल्कुल, है ना? जी, तो जी, है तो वही ह्यूमन बींग, वही पॉलिटिशियन भी होते हैं। पता नहीं कौन सा नजरिया कि पॉलिटिशियन है तो सब चीज़ से दूर रहे। नहीं तो नहीं, मैं वही बता रहा हूँ ना। तो ये क्यों क्रिटिसाइज करते कि क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन में पॉलिटिशियन नहीं होने चाहिए? आप देखिए बेस्ट काम किसने किया है ना? NKP साल्वे, ही वॉज अ पॉलिटिशियन, ही वॉज BCCI प्रेसिडेंट। माधवराव सिंधिया BCCI पॉलिटिशियन और ये पॉलिटिशियन और BCCI प्रेसिडेंट ऑल्सो।
शरद पवार जितना ही है जो है, वानखेड़े साहब जो फाइनेंस मिनिस्टर थे महाराष्ट्र के, बीसीसीआई प्रेसिडेंट, तो उन्होंने वानखेड़े स्टेडियम बनवाया। शरद पवार ने बीसीसीआई का हेडक्वार्टर बनाया और वहाँ पे जो है ये जो बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बहुत बड़ी एकेडमी बनाई है। तो कौन कितना कंट्रीब्यूशन करता है? बीसीसीआई सक्सेसफुल क्यों हुआ? क्योंकि एक ऐसा गुलदस्ता था जिसमें सब किस्म के फूल थे, जिसमें पॉलिटिशियन भी था, बिंद्रा जैसे ब्यूरोक्रेट्स भी थे, डालमिया जी जैसे बिजनेसमैन भी थे, और ब्रजेश पटेल और ये राज सिंह डूंगरपुर जैसे खिलाड़ी भी थे। सो इट वाज अ कॉम्बिनेशन ऑफ पीपल फ्रॉम ऑल वॉक्स ऑफ लाइफ। क्रिकेटर्स भी थे उसमें बिजनेसमैन भी थे, ब्यूरोक्रेट्स भी थे और पॉलिटिशियंस भी थे। सब मिलके कोशिश करते थे और उसकी वजह से सारे काम होते थे। और बीसीसीआई कहाँ से कहाँ पहुँचा। आज जितने स्पोर्ट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बीसीसीआई अकेला जिसने आज तक 1 रुपया सरकार से ग्रांट नहीं लिए, उल्टे हम हजारों करोड़ रुपया टैक्स के रूप में देते हैं। बिल्कुल। जैसे कारपोरेट टैक्स पे करते हैं वैसे बीसीसीआई टैक्स पे करती है हजारों करोड़ गवर्नमेंट को। तो ये गलत फहमी भी इस शो के जरिए दूर जो जानी चाहिए देश वालों को कि बीसीसीआई जो है वो कोई टैक्स नहीं देती, कुछ नहीं, हजारों करोड़ टैक्स देती जैसे प्राइवेट कंपनी देती। और जहाँ तक आप दूसरे सवाल का पूछे, सबने कॉन्ट्रीब्यूट किया, उन्होंने भी कॉन्ट्रीब्यूट किया, है ना। उनके आने के बाद वुमेन क्रिकेट इम्प्रूव किया, उसके बाद जो है आप ये देखो डोमेस्टिक क्रिकेट कितना इम्प्रूव किया, और हमने जो है WPL और ये इनकी वुमेन की और जो मेल प्लेयर्स हैं सबको बराबर इस पे कर दिया। तो इसलिए तमाम चीज़ें अब वो जो है, आप ही बताओ कोई फादर अगर वकील है, जितने बड़े वकील उनके बेटे क्या कर रहे हैं? वकील है, आपके जान वो वकील है, जजेस के बेटे जज तमाम हो रहे हैं। तो पॉलिटिशियन के बेटे अगर पॉलिटिशियन अगर कोई कहीं है तो उसको इसमें एक प्रोसेस है, ऐसे कोई नहीं आ सकता। पहले स्टेट इलेक्शन में आपको चुनाव लड़के आना पड़ेगा, जब स्टेट इलेक्शन में आप चुनाव जीतेंगे फिर जब उसके रिप्रेजेंटेटिव के लिए आपको जाना पड़ेगा, बीसीसीआई में भी चुनाव। तो सब कोई ऐसे नहीं हो सकता कि हमने आपको उठा के अपॉइंट कर दिया। आई कांट डू दैट। मैं आपसे बिल्कुल सहमत हूँ उस पर बीजेपी तो कहती है कि पॉलिटिशियन के बच्चों को पब्लिक ऑफिस में आना ही नहीं चाहिए, इतने खिलाफ हैं वो राहुल गांधी जी और उन लोगों से। तो आप कह सकते हैं कि बीजेपी का अगले भाग में जहाँ तक बीजेपी इन पे गांधी फैमिली या किसी पे परिवारवाद का आरोप लगाती है, तो उस पर हमारा बड़ा स्पष्ट कहना है कि परिवारवाद का आरोप लगाने का राइट उनको कोई नहीं, क्योंकि उनके तमाम परिवारों के इतने बच्चे हैं राजनीति में कि पूछो मत। On the 19th of August of this year, you and your fellow Congress Rajya Sabha MP, Imran Pratapgarhi, went to the Delhi airport to welcome the vice presidential candidate of the opposition, B. Sudarshan Reddy. Normal circumstances में no one would have thought about it. It would have been a passing by event. But the candidate in question has been a former judge of the Andhra Pradesh High Court, Chief Justice of the Guwahati High Court, and a former judge of the Supreme Court of India. The Congress party has raised the very credible issue of democratic and constitutional backsliding in the recent years. But do you think that there's not a certain level of controversy that could rise from a former judge being thrown into a position which is clearly political in a hyper-polarized environment? एंड आई नो आप बोल सकते हो कि बीजेपी ने पिछले 11 साल में ऐसे बहुत सारे लोग जो जज थे फिर पॉलिटिशियन बन गए, अभिजीत गंगोपाध्याय और फिर आरती साठे रिसेंटली, लेकिन कांग्रेस की भी इस बात में हिस्ट्री रही है। यू हैड बहारुल इस्लाम, रंगनाथ मिश्रा, अभय थिप्से। तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मेरा ये मानना है कि रिटायर होने के बाद जो है जज कोई पोजीशन ले सकता है, नॉट इमीडिएटली। तो सुदर्शन रेड्डी को रिटायर हुए बहुत साल हो गए, इधर काफ़ी वो सोशली और पॉलिटिकली एक्टिव भी थे। जो सेंसस का इशू था तेलंगाना में उन्होंने ही कंप्लीट किया था, तो इसलिए इतने साल बाद वो उन्होंने वाइस प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट पे सब में कंसेंसस बनी और उन्होंने अपनी कंसेंट दी तो आए। इसके पहले आपको पता है जस्टिस हिदायतुल्लाह वो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रह चुके हैं, एंड ही वाज एक्टिंग प्रेसिडेंट आल्सो फॉर फ्यू डेज, है ना। तो ये कोई इसमें बात नहीं है, लेकिन क्या है ना कि आप जो बात करें वो तरीका ख़राब है कि आप सिटिंग जज हो और आपने रिज़ाइन किया एज सिटिंग जज, आप फेवर करते रहे किसी पॉलिटिकल पार्टी को, एकदम रिज़ाइन करके आप लोकसभा लड़ गए
और हाँ जी, राज्यसभा में आ वो गए, कहा जा वो सकता गड़बड़ है, है। लेकिन हम ऐसे देश में रहते हैं जहाँ जो फॉर्मर जज है वो दोबारा वकील भी नहीं बन सकता और वो दोबारा कोर्ट में जाके आर्ग्यू नहीं कर सकता किसी के लिए, क्योंकि सोचते हैं कि जो दूसरा जज होएगा जो वो केस सुन रहा होएगा उसका कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो सकता है। देखो, तो मैं- इस मायने में अगर आप एक फॉर्मर जज जिन्होंने काफ़ी सेंसिटिव मामलों पर सुनवाई दी होगी, आप उनको वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के इलेक्शन में कैसे तो वाइस खड़ा कर प्रेसिडेंट सकते इंडिया हैं? में क्या फेवर कर देंगे? वो कुछ नहीं। राज्यसभा में बैठते हैं, कंट्रोल करते हैं किसको कब बोलना हाँ, है, तो क्या बोलना है। राज्यसभा में कंट्रोल करते उस चीज से थोड़ी, कितने साल पहले वो रिटायर हो गए। लेकिन जज थे फेवर के इशू तो आप लेकिन हमेशा जज तो थे उठा सर। सकते हो ना अगर कोई है। और दूसरी चीज, एक चीज मैं और बताऊं, हाई कोर्ट का जज जो रिटायर हो जाता है वो सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के भी जज भी रह चुके हैं हाँ, ना? तो नहीं, वो प्रैक्टिस करता है जो आप कह रहे हो ना कि, हाँ कि जी, आप वकील को लेकिन ये practice former नहीं कर- सुप्रीम कोर्ट जज भी है। प्रैक्टिस नहीं कर सकता। हाई कोर्ट से रिटायर्ड जज जो है सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस कर सकता है। इवन चीफ जस्टिस हाई कोर्ट कराओ वो भी प्रैक्टिस कर सकता है। बी सुप्रीम सुदर्शन कोर्ट जी का जज former practice नहीं कर सुप्रीम सकता। कोर्ट जज है। तो ये बहुत साल पहले रहे हैं। इसके पहले की तमाम उदाहरण, अभी रंजन गोगोई वो राज्यसभा मेंबर है, मैं मानता हूं, मैं रंगनाथ मानता हूं, मिश्रा लेकिन रहे अगर राज्यसभा कांग्रेस मेंबर। पार्टी- पर अगर कांग्रेस पार्टी मानती है कि वो भाजपा से संवैधानिक मूल्यों को ज्यादा मानती है, तो फिर आपको देखिए, उसमें कांग्रेस पार्टी का ये मानना था कि जो ये सिटिंग जज रिजाइन करके, पहले तो फेवर देते हैं और रिजाइन करके तुरंत इलेक्शन लड़ गए पार्टी, उसको लेकर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी कंसर्न मतलब व्यक्त की है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। असेंबली में कंस्टिट्यूएंट असेंबली अब में ऐसा डॉक्टर थोड़ा ना बी आर कि कोई अम्बेडकर ने बोला था 10 साल सेपरेशन ऑफ पहले- पावर्स एंड इम्पार्शियलिटी ऑफ हाँ, द 10 जुडिशरी। साल पहले कोई Major जज- virtues, sir. मैं कह रहा हूँ कूलिंग ऑफ तो होता है ना, 10 साल पहले कोई जज रहा हो, इसका तो जिंदगी भर फिर वो कुछ नहीं, 10 साल बाद अगर कुछ बन रहा, 5 साल बाद बन रहा, तो क्या फर्क है? तो अगर डीवाई चंद्रचूड 10 साल बाद भाजपा के नेता बन जाए तो आपको उससे कोई तकलीफ नहीं? कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कोई भी तकलीफ बन नहीं जाए, किसी का भी। वो तो इसके बाद ये इमीडिएटली जो बनते हैं, एक कूलिंग ऑफ होना चाहिए। इमीडिएटली जो बनते तो फिर देखो वो उसमें लोगों को प्रॉब्लम थी। ठीक है, वी कैन एग्री टू डिसएग्री। थैंक यू। गुड आफ्टरनून राजीव जी, मेरा नाम रेहान किडवाई है। आई एम स्टडिंग लॉ इन द नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी इन जोधपुर। और मेरा सवाल ये था कि कांग्रेस पार्टी में हमको काफ़ी इनफाइटिंग और कॉन्ट्रडिक्शंस दिखते हैं, जैसे कि राजस्थान में जब सचिन पायलट जी और अशोक जी का फ्यूड हुआ था तो काफ़ी मतलब it was a big issue in the public media, and then subsequently we lost Rajasthan. Even in Chhattisgarh, the feud between Bhupesh Baghel ji and T. Singh Deo ji, it led to the party creating a deputy chief ministerial position for T. Singh Deo, and then subsequently we lost that state as well. हिमाचल प्रदेश में भी 6 MLA की क्रॉस वोटिंग हुई थी राज्यसभा इलेक्शन में, बल्कि वो हम अभी भी हमारी सरकार है हिमाचल में, बट ये काफ़ी बड़ा मुद्दा बन गया था मीडिया में। उसके बाद कांग्रेस पार्टी काफ़ी बार कहती है कि मोदी जी की अब उम्र होगी है, ही 75 years old, he should retire from active politics. Yet Khadge ji often says that there's no retirement age in politics, being him 83 years of age himself. So my question is this: कि how can the Congress party credibly promise the voters a stable government when they're not being able to? Tell me one party where is not internal fight. There is internal, Tell me one party. but in the BJP we don't see. अच्छा, we have given example of Rajasthan. Where is Vasundhara Raje? She was, about to become the chief minister. She was deprived. Bhajan Lal Sharma was brought. Massive fight between them. Massive groups amongst them. In Chhattisgarh also, Raman Singh was supposed to become chief minister. What happened? Right. Some Vishnu Dev Sai was brought in. He was made. So these, wherever the human being is, these conflicts have to be there. So every political party has got internal squabbles. सबके अंदर ये झगड़े, कोई नई बात नहीं है। ऐसे हिमाचल में भी था, लेकिन हम वो जीत के आए। जनता ने, इन लोगों ने, जिस बीजेपी वालों ने जिनको तोड़ा था ज़बरदस्ती हैं, उनके वो सब चुनाव हारे। उनको सबक दिया जनता ने कि भाई तुम अभी जीते कांग्रेस से और तुम छोड़ के इस तरह चले गए, तो उनको सबक मिला। तो ये जहाँ तक है ये बात आपकी, तो ये सब पार्टियों में इस तरह के ये हैं। मगर जो एनडीए अलायंस है उसमें तो ये इतना पब्लिकली नहीं दिखता। जैसे अभी की बात करें तो उमर अब्दुल्ला जी ने इंडिया अलायंस में नहीं दिखता ना, तो अच्छी बात है ना। एनडीए अलायंस में नहीं दिखता। एनडीए में तो बहुत झगड़े दिखते हैं। बट इंडिया अलायंस में आप अगर हम उसकी बात अच्छा, करें, गडकरी जी के बयान नहीं सुने आपने? अपनी सरकार के मिनिस्टर रहते हुए देते रहते हैं, जी, बट अभी क्या क्या बोलते रहते हैं, बताओ, है ना। तो ये तो कोई बात नहीं। और जहाँ तक ये है कि खड़गे जी ने कब कहा,
वो तो हम लोगों ने तो कहते हैं कि मोदी जी 75 रिटायर हुए, ये तो उन लोगों का अपना फैसला था। उन्होंने स्वयं ये लिया था कि जो 75 साल, उस चक्कर में अडवाणी जी रिटायर किए गए, मुरली मनोहर जोशी रिटायर किए गए, शांता कुमार रिटायर किए गए, कोश्यारी रिटायर किए, तमाम लोगों को रिटायर किया, नजमा हेपतुल्ला भी रिटायर हुए। तो वो तो उनका फैसला, हम नहीं कह रहे हैं, वो अपना जो जिसको रिटायरमेंट लेना वो खुद तय करे, हम नहीं मांग कर रहे हैं। अभी उमर अब्दुल्ला जी ने कहा है कि हाँ, ये वोट चोरी का मुद्दा तभी उठाया जाता है जिस कॉन्स्टिट्यूंसी में कांग्रेस पार्टी हार जाए, इंडिया अलायंस हार जाए, और उन कॉन्स्टिट्यूंसी में ये उनका अपना व्यू है। लेकिन जिस तरह के रिकॉर्ड और प्रेजेंटेशन राहुल गांधी ने किया और जिस तरह के रिकॉर्ड दिया, आखिर सुप्रीम कोर्ट भी मानना पड़ा ना। तो ECI का तो उमर अब्दुल्ला ने जो बात कही वो अपने यहाँ के जम्मू कश्मीर को से कर रहे हैं। अलायंस प्रेजेंट अ यूनाइटेड फ्रंट व्हेन इट कम्स टू द इशू ऑफ वोट। ऑन दिस इशू entire India alliance is together. Today also lot many leaders were DMK, Stalin, other leaders, they all are going to Patna to join it. So entire India bloc is together as far as this fake voters issue is concerned. That's easy to say, Rajiv ji, but Omar Abdullah has openly criticized, even in Bihar where the voter adhikar yatra is happening, Tej Pratap Yadav has also said that the vote chori issue is not an issue to be brought up at this time because it's not. देखो तेज प्रताप यादव का अपना प्रॉब्लम चल रहा है, इसलिए कुछ लोग को तो लोग मिलेंगे जो ऐसे बोलेंगे, लेकिन जो है मेजर कौन पार्टी, लालू, अगर उस पार्टी में देखो तो नेता कौन है, लालू यादव और तेजस्वी यादव, वो क्या कह रहे हैं, वो तो पूरे कंपेन में साथ है। तो फिर थैंक यू राजीव जी। नमस्ते शुक्ला जी, मैं दक्षेश चेतन हूँ, मैं 11वीं कक्षा का एक छात्र हूँ। और हाँ जी, कहाँ के छात्र हैं? 11वीं कक्षा के। 11वीं में किस स्कूल में? ब्रिटिश स्कूल में। ब्रिटिश स्कूल में। ब्रिटिश। हाँ जी, तो मेरा क्वेश्चन आपके लिए ये है कि मिस्टर शुक्ला, in 2000 you shocked everyone by winning a Rajya Sabha seat with just 22 MLAs backing you, but ending up with 51 votes. MLAs from multiple parties crossed lines to vote for you. This pattern of cross-party appeal has continued throughout your career. Recently, we've seen you urging Punjab CM Bhagwat Mann on law and order while maintaining cordial relations with BJP leaders. As both Congress leader and BCCI vice president, you often find yourself mediating between competing political interests that affect cricket. Can you describe one specific instance where your ability to speak to everyone actually helped resolve a cricket governance issue that was getting stuck due to political considerations? Well, when I had contested Rajya Sabha election, there were 27 MLAs of Loktantrik Congress which had supported me. After that, small parties had also supported me. And that's how I had won. But I am saying that there is no place of acrimony or enmity in politics. There are ideological differences, difference of opinion. But it's not that we are enemies. So interacting with people from other political parties is not a bad idea. It's a good thing because if your outreach is, is such that you can interact with people from other political parties, then you can easily find the solutions. What Arun Jaitley used to do, he used to reach out to entire opposition. He was also doing the same thing. Sushma Swaraj was also doing the same thing. ऐसे हमारे कांग्रेस के जितने ये थे, अहमद पटेल, he also used to do the same thing. So interacting with other people, having relations, that can sort out many problems, can resolve lots of issues. So in BCCI, within BCCI, there was never anything on political lines. बीजेपी का भी आदमी था, कांग्रेस के भी आदमी थे, दूसरी पार्टी को भी होते थे, सब रहते थे एक साथ। वहाँ कभी पॉलिटिकल लाइंस पे कोई डिसीजन नहीं हुआ, तो इसीलिए बड़ी आसानी रहती थी, सब मदद करते थे। मोदी जी भी बीसीसीआई की मीटिंग में आते थे, गुजरात फेडरेशन के प्रेसिडेंट के बताओ, अमित शाह जी भी आते थे, और हमारे कांग्रेस के भी जो है वो सीपी जोशी भी बैठते थे, हम भी बैठते थे, सारे लोग बैठते थे, सब वहाँ पे डिस्कस करके, और कोई भी प्रॉब्लम हो तो हम उसका सोल्यूशन निकालते थे। तो ये तो अच्छी बात है ना, सब मिलजुल के, कोई वहाँ बीसीसीआई के अंदर कोई पार्टी पॉलिटिक्स नहीं है, और इट्स नॉट ए पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन, इट्स ए स्पोर्ट्स बॉडी। You've maintained Congress royalty while working seamlessly with the BJP-era BCCI leadership, such as when Jai Shah was secretary. But this creates an interesting dynamic where your party criticizes policies you help implement. Your cross-party effectiveness might be undermining Congress's ability to present coherent opposition. So there can be a bit of contradiction in roles, because when the Supreme Court allowed MPs back into the BCCI in 2022, Congress could have opposed this as cronyism, but you are benefiting from this. So your seamless transition also shows how cricket governance operates above partisan politics. देखो, मैंने फिर वही कहा
कि आप ही कैसे रोक लगा सकते हो कि एमपी आना जाए या पॉलिटिकल, पिछले सवाल के जवाब में था कि पॉलिटिकल पर्सन जो है वो और कहीं नहीं जा सकता, वो किसी दूसरे ग्रह से आया है तो उसे एक कोने में खड़ा कर दो और कुछ नहीं कर सकता, बाकी सब लोग सब करता है। तो एक बिजनेसमैन भी आ सकता है बीसीसीआई में, एक जो है ब्यूरोक्रेट भी आ सकता है, एक रिटायर्ड जज भी आ सकता है ओम्बुड्समैन बन के, सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं आएगा। इसका क्या मतलब? पॉलिटिशियन का वो भी तो ह्यूमन बीइंग है। तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद वो हटाया कि भाई एमपी आ सकता है, मिनिस्टर्स पर सिर्फ उन्होंने लगाया था वहाँ पे। तो इसमें कौन सी बात? तो इसमें मैनेज क्या क्या ये ना, ये क्रोनिज्म है, इसको क्रोनिज्म कहने ही नहीं चाहिए। इन सब का जवाब मैं लगातार दिया आपको। नमस्ते सर, मेरा नाम अथर्व टंडन है। मेरा आपके लिए सवाल है, अर्लियर दिस ईयर यू हेल्ड द आर्म्ड फोर्सेस ऑन देयर परफॉर्मेंस इन ऑपरेशन सिंदूर. You also reiterated the fact that India will only compete against Pakistan in ICC tournaments. India will play against Pakistan in the Asian Cup, which is an organization being chaired by Mohsin Naqvi, who has constantly made hostile statements threatening the safety of Indian citizens. Sir, as a key decision maker within the BCCI, how do you justify this decision? Well, government has already issued a statement day before yesterday, stating that our policy is that we won't be playing any bilateral matches with Pakistan and no bilateral tours to take place. पाकिस्तान की टीम इधर नहीं आएगी, हम भी उधर नहीं जाएंगे, लेकिन जो मल्टीनेशनल टूर्नामेंट है, इंटरनेशनल टूर्नामेंट है, उनमें हम पार्टिसिपेट करेंगे। उसमें कल को ओलंपिक में भी तो पाकिस्तान की टीम जाती है, तो क्या हम ओलंपिक से बाइकआउट कर जाएंगे? कॉमनवेल्थ में जाती है गेम्स में, एशियन गेम्स में जाती है, तो हम बाइकआउट करें। सिक्योरिटी काउंसिल में इस बार पाकिस्तान चेयरमैन है, तो हम सिक्योरिटी काउंसिल में भाग नहीं लेंगे, यूएन की कमेटीज में भाग नहीं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि सिर्फ क्रिकेट को इशू बना के बैठ जाते हैं कि क्रिकेट ना हो, बाकी हम बाकी सब ओलंपिक में भी साथ उनके खेल रहे हैं। वो जो है थ्रोअर नीरज चोपड़ा, उसके साथ दूसरा कौन कॉम्पिटिटर है? I understand that. हाँ, तो वो सब ठीक है, वो सब चले, खाली बस क्रिकेट में नहीं खेलना चाहिए, बाकी सब जगह। तो गवर्नमेंट ने पॉलिसी क्लियर कर दी है कि जो आप इंटरनेशनल टूर्नामेंट है उनमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हो, वरना सब जगह से आप बाहर हो जाएंगे। और अगर हम नहीं खेलेंगे तो वॉकओवर मिलेगा। सर, ये तो बायलैटरल ना खेलने की पॉलिसी तो 2013 से लागू है, तो ये उसी पॉलिसी पे चल रहे हैं। सर, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद एज बीसीसीआई वाइस प्रेसिडेंट, व्हाई इज इट दैट कि गवर्नमेंट ऑफिशियल स्टेटमेंट दे रही है परंतु बीसीसीआई अपनी तरफ से कुछ स्पेसिफिक स्टेटमेंट नहीं दे पा रही? नहीं, बीसीसीआई ने तो एशिया कप का शेड्यूल जो है वो रिलीज किया है। हम होस्ट हैं इस बार एशिया कप में, शेड्यूल हमने टीम भी बना दी, आपने देखी नहीं? जी सर। तो फिर और बीसीसीआई क्या करे सर? लेकिन पॉलिटिकल बयान भाई, कोई पब्लिक रैली करे और उसमें मीटिंग में भाषण दे वहाँ सर, परंतु लेकिन पब्लिक बैकलैश तो इसके लिए भी हो ही रहा है। पब्लिक बैकलैश तो सोशल मीडिया पर होते ही रहता हर विषय पे। आपने नीली कमीज पहनी कि पीली क्यों नहीं पहनी, उस पर भी आपको इसमें मिलेगा, तो उसमें तो चलता रहता है। लेकिन आप इसके लार्जर कॉन्सिक्वेंसेस देखो ना, क्या है इसके लार्जर का। आप आईसीसी में आपकी पोजीशन क्या हो जाएगी अगर आप बायकॉट करोगे ओलंपिक में? और अगर बायकॉट करना है तो ठीक है, फिर सब जगह से करो। ये नहीं होगा कि आप ओलंपिक में टीम भेजते रहो, जहाँ पाकिस्तान भी आ रहा है, एशियन गेम्स में भेजते रहो, कॉमनवेल्थ गेम्स में भेजते रहो, सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग में बैठते रहो, वहाँ पे हैं यूएन की सब कमेटीज में उनके साथ बैठे रहो, जितनी कमेटीज़ होती हैं। साउथ कोऑपरेशन में भी आप पहुँचे हो, सब जगह आप चल रहा, बस क्रिकेट ना हो, बाकी सब जगह पाकिस्तान के साथ बैठे रहो। ये तो नहीं जाएगा, तो एक तय कर लो। सर, मैं उससे तो अग्री करता हूँ आपसे कि अगर बॉयकॉट होना चाहिए कर रहे तो सवाल वही खत्म हो गया, अगला सवाल पूछो। सर, लेकिन फिर भी सर, पाकिस्तान के अगेंस्ट पाकिस्तान को देखो हराओ बुरी तरह से उस मैच में, वो पे खुश होना चाहिए तुम्हें कि वॉक ओवर दे दो उनको, अपने आप उनको पॉइंट मिल जाएगा और वो निकल जाएंगे। जी सर। तो ये सिर्फ एक जो है पब्लिसिटी के लिए सेंटिमेंटल इशू है जो फैलाया जाता है। जब एक पॉलिसी गवर्नमेंट ने बना दी तो हम उसी पॉलिसी पे चल रहे हैं। जी सर। तो अगर गवर्नमेंट मना करती तो अब नहीं खेलते हो। अच्छा, तो सर लेकिन ये तो एक सेपरेट इशू हो गया। फ्यूचर में आने वाले समय में जितनी भी कॉम्पिटिशन्स होंगी, समझ लीजिए जैसे एशियन कप हो गया उनमें से एक, उसके अंदर उसकी लीडरशिप पे कैसे इम्पैक्ट? नमस्ते शुक्ला जी, मेरा नाम प्रियांशु सेन है और मैं पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट हूँ। मेरा आपसे बहुत सीधा सवाल है कि ये कहना गलत नहीं होगा कि कांग्रेस की हिस्ट्री इंडिया की हिस्ट्री में कांग्रेस का एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है
और कांग्रेस की हिस्ट्री में नेहरू गांधी फैमिली का बहुत इंपॉर्टेंट रोल हुआ है। और मैं आपको ये नहीं बोलूँगा बिकॉज मैं जानता हूँ, आपने अक्सर सुना होगा कि लोग बोलते हैं कि जैसे मुझसे पहले भी लोगों ने कहा कि क्योंकि उनके पिताजी पॉलिटिशियन थे, उनकी माताजी पॉलिटिशियन थी, तो वो भी पॉलिटिशियन बने। और आपने फिर बोला कि बीजेपी को अधिकार नहीं है ये डिसाइड करने का कि कौन किसका बेटा क्या करेगा, और पॉलिटिशियन भी आम इंसान की तरह। और मैं आपसे एकदम सहमत हूँ इस बात पर कि पॉलिटिशियन भी आम इंसान है। पर आपको क्या ये नहीं लगता है कि कांग्रेस पार्टी अक्सर कॉम्पिटेंसी को भी, जो एक बहुत इम्पॉर्टेंट फैक्टर होना चाहिए डिसाइड करने के लिए कि कांग्रेस जो इतनी एक ऐतिहासिक पार्टी है उसके हेड बनने के लिए, वहाँ पे प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए या किसी भी पोजीशन के लिए कॉम्पिटेंसी ज़्यादा ज़रूरी है देन बीइंग रिलेटेड टू द गांधी नेहरू लीनिएज। ऑल्सो कि आज जो हमारे कांग्रेस के करंट, मैं कह सकता हूँ कांग्रेस के हिस्ट्री के हिसाब से जो राजकुमार है राहुल गांधी जी, उन्होंने कभी भी हमारी जनरेशन को पर्टिकुलरली, हम तो पिछले 10 साल में देख रहे हैं, उससे पहले हम थे नहीं, पर पिछले 10 साल से हम लोग एक बार भी ये नहीं देखा हम लोगों ने जहाँ पे राहुल गांधी ने एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे एक्सेप्ट लीडर ऑफ ऑपोजिशन लोगों को ये मौका दिया है कि वो विश्वास कर सके कि राहुल गांधी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशनल ऑफिस संभाल सकते हैं। जैसे नरेंद्र मोदी पहले मुख्यमंत्री थे, उससे पहले भी उनका एक लंबा पॉलिटिकल करियर था, उन्होंने शुरू किया कहीं से, तो लोगों ने उनको नोटिस किया, ग्रास रूट लेवल पर नोटिस किया है, मुख्यमंत्री के रूप से भी नोटिस किया है और फिर प्रधानमंत्री के रूप से भी नोटिस किया है। यह हमें लगता है कि राहुल गांधी, पर्टिकुलरली मुझे लगता है कि राहुल गांधी सीधा आए हैं, उतरे हैं और वो बोलते हैं कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मुझे मुख्यमंत्री बनने की ज़रूरत नहीं है। उन्होंने कोई कैबिनेट पोजीशन भी होल्ड नहीं की, मनमोहन सिंह के टाइम पे भी नहीं की। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने कभी भी हमें समय नहीं दिया है ये देखने के लिए और डिसाइड करने के लिए कि वो क्या वो कॉम्पिटेंट है प्रधानमंत्री बनने के लिए, और उन्हें ये विश्वास है कि ये उनका जन्मसिद्ध अधिकार है और ये राजत्व चल रहा है कि क्योंकि मेरे पिताजी प्रधानमंत्री थे, मेरी दादी प्रधानमंत्री थी, मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर प्रधानमंत्री थे, तो मैं भी प्रधानमंत्री बनूंगा। आपका इस पर क्या कहना है? देखिए, सबसे पहली बात तो मैं बताऊं कि ये कहना कि कॉम्पिटेंस को मौका नहीं मिलता है, गांधी फैमिली आ गया थी। मनमोहन सिंह 10 साल प्राइम मिनिस्टर, वो गांधी फैमिली से थे नहीं, सोनिया गांधी ने अपना मना करके उनको तय हो गया था वो प्राइम मिनिस्टर बनेंगी। बट मिसेस सोनिया गांधी के मना करने का कारण भी था क्योंकि लोकसभा में सबने विरोध किया था। सोनिया गांधी ने विरोध किया था, सबके सुषमा स्वराज जी ने कुछ सुषमा स्वराज करने से क्या होता, जो यूपीए था उसमें सारे लोगों ने बहुमत की चिट्ठी राष्ट्रपति को दे दी थी। जब बहुमत की चिट्ठी चली गई तो जब मेजोरिटी होगी तो वही प्राइम मिनिस्टर बनेगा। उन्होंने खुद मना किया और मनमोहन सिंह जी को 10 साल प्राइम, इसके पहले नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर 5 साल रहे। तो ये कहना कि सिर्फ गांधी फैमिली बनती है, ऐसे नहीं है। लगातार जो है जो जहाँ प्राइम नरसिम्हा राव जी कॉम्पिटेंट थे वो बने और ये मनमोहन सिंह जी कॉम्पिटेंट थे वो बने। तो कोई कॉम्पिटेंस को बिल्कुल नहीं नकारी, बल्कि राहुल गांधी कांग्रेस अध्यक्ष थे, वो छोड़ा और आज खरगे जी हैं। बट सर राहुल गांधी अभी भी पीछे से संभाल रहे हैं, ये तो सबको पता है। ये तो कोई भी कह सकता है, किसी के लिए आप कह रहे हैं राहुल गांधी जी का कोई से नहीं है कांग्रेस पार्टी में? अध्यक्ष नड्डा जी हैं, कमान कौन संभाल रहा है? मोदी जी। तो फिर तो ये पर वो उधर क्यों नहीं बोल, बात तुम ही कह रहे हो, प्रधानमंत्री नहीं थे ना तो सर। आप सुनो ना, तो ये जो होता है इसको कोई भी कुछ कह सकता है, मोदी संभाल रहे हैं, जब नड्डा जी उदाहरण चला रहे हैं तो ऐसे यहाँ भी खरगे जी पूरी तरह से चला रहे हैं। ऐसा नहीं ये कोई कहने की कमान संभाल रहे, ये सब तो मीडिया की बातें होती है। और इसके अलावा जो है कि राहुल गांधी तो चाहते तो प्राइम मिनिस्टर बन जाते, मिनिस्टर बन जाते। कितनी बार क्यों नहीं बने? मनमोहन सिंह जी ने उनको प्रस्ताव दिया, उनका अभी हम नहीं बनेंगे, अभी हम एमपी रह के तमाम चीजें सीखेंगे, पूरे देश की यात्रा करेंगे। यूनिवर्सिटी नहीं था उनके ट्रेनिंग के लिए। देखो मेरा 2 मिनट तुम ले जा रहे हो, 4,500 किलोमीटर यात्रा करके उन्होंने देश समझा परखा, ये भी तो एक अच्छी बात है ना। हाँ जी सर, थैंक यू। Good afternoon, sir. My name is Leela. Sir, the Rajya Sabha is regarded as the Council of Elders. It started off as a body of much needed perspective. It's considered supposedly different from the other limbs of the government. But currently, in your opinion, is this anything more than symbolic or just an appendage? The reason why I ask this is because there is currently growing doubt surrounding the Rajya Sabha and it just being a retirement home for politicians. For example, there are some of the view that a unicameral parliament would be better for India's democracy. As an MP in the Rajya Sabha itself, what do you think of its continued relevance as an effective counterpoint to the Lok Sabha, given that decisions such as the Aadhaar Act being passed as a money bill in 2016, for example, are still taking place? And what case would you make for the continued existence of India's bicameral parliament? Well, Rajya Sabha had been constituted keeping in mind that people who are not hardcore politicians can also contribute to the growth of the nation. Then they can be made MPs by bringing into upper house, which is called Rajya Sabha. It's a
council of states. I mean, people from states, and then MLAs, they vote for them for Rajya Sabha election. Then 6 persons are nominated by the president also. So that had been constituted just like another body where people from other walks of life also, not hardcore politicians. So Lok Sabha, Rajya Sabha, that had been upper house and lower house had been created. Sir, so I it has got understand that. full significance because Correct. anything goes there, then it comes to Rajya Sabha, then scrutiny is there, standing committee, everything. So it's better now for a governance if there are two bodies. If That there is are true, two sir, bodies, but better. there is a Just- mismatch in intention and action. No, Currently, there is no mismatch. You are there asking is about a that bit money of will be, Aadhaar card Not will just money that, bill. sir. The redundancy of the Rajya Sabha and the criticism towards that. In regards to, for example, in 2021, the Farm Laws What Repeal redundancy? Bill was passed Best without debates, debate. best debates take place in Rajya Sabha. Sir, sometimes they don't take place. No. Sometimes the other Sometimes the thing Lok is Sabha passes bills without consultation. Best debates take place in Rajya Sabha. Correct. There are people who are highly educated. They contribute a lot. And then the kind of legal work, I mean, the research on the bills, and then their participation in standing committee, consultative committee, select committee, joint parliamentary committee, and their contribution is immense. So it's just I mean, anybody can say anything about anyone. That is so true, that's sir, that. But but- Rajya Sabha has got huge relevance, significance, Sir, and then it's in very vital, 2016 pivotal as far as the parliamentary democracy is concerned. Symbolically, sir, that might be true. But in 2016, if all of this Symbolically, is true, practically. if all of this is true, sir, in 2016, why did The only Jairam thing Ramesh Lok Sabha- himself criticize the money bill as the Aadhaar Act being passed as a money bill, for example? No, what Jairam Ramesh was saying that should have been passed by the Rajya Sabha. Correct. But government converted into money bill ticket because there is a provision that Yes. if it is a money bill, then it is supposed to be returned to Lok Sabha. It is not likely to be passed in Rajya Sabha. And if for 14 days it is not passed, then automatically it will be considered as if it has been returned, and that will be, this provision had been made only for money bill. So like budget gets stuck. If Rajya But Sabha did the Rajya opposes Sabha it. agree with that decision at that time? Was No, this Raj- something that the Rajya Sabha was in favor No, of, sir? but if it is money bill, it was considered return automatically. So that's why that objection has been made that Aadhaar card issue should not be considered as a money bill. This is what he had disputed in Correct. Supreme Court. So that's fully right. And a money bill means which has got something to do with financials. So the functioning of the government is not come to a halt. That's why money bill provision is there. All right, sir. It seems you have faith in the symbolic value of the Rajya Sabha. That's not a symbolic. It's नमस्ते राजीव जी, मेरा नाम आदित्य है, मैं 12वीं कक्षा से हूँ और आपकी तरह एक पॉलिसी मेकअप बनना चाहता हूँ। सर, 2 हफ्ते पहले द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप सेड दैट द इंडियन इकॉनमी इज़ डेड। उसके जवाब में आपने कहा था कि वो गलतफहमी में और जो भी हमारे आर्थिक स्थिति को कमज़ोर जानते हैं वो गलत है। परंतु सर, कांग्रेस से बहुत नेता बल्कि विपक्ष के नेता राहुल गांधी उनके साथ सहमत थे और खेलते हैं एवरीवन इन द वर्ल्ड नोज द इंडियन इकॉनमी इज़ डेड एक्सेप्ट मोदी एंड अमित शाह। तो आपको क्या लगता है कि राहुल गांधी जी भी इस गलतफहमी में हैं? एक चीज़ क्या है कि कुछ सेंटेंस लेके बोल दिया, उसके बाद आगे उन्होंने कहा कि जो बेरोजगारी चल रही है, जो ही चल रहा है, इसकी महंगाई और बेरोजगारी उसकी वजह से इकॉनमी का ही है। उन्होंने आगे बोला था जिसको आगे उन्होंने उतना सेंटेंस लेके दे दिया। मैंने भी क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि नहीं, ट्रंप ऐसे क्यों बोल सकते हैं। इस इकॉनमी को इकोनॉमिक रिफॉर्म्स कौन लाया? नरसिम्हा राव जी प्राइम मिनिस्टर, मनमोहन सिंह जी ने इकोनॉमिक रिफॉर्म्स बनाए। फिर उसके बाद उस रिफॉर्म्स को वाजपेयी जी ने बढ़ाया है, और उसके बाद जो है राजीव गांधी ने उन रिफॉर्म्स को, जितने भी शुरुआत राजीव गांधी ने की थी, राज्य चलिए कमेटी बना के, नरसिम्हन कमेटी बना के, वहाँ से रिफॉर्म शुरू हुए। फिर उनको नरसिम्हा राव जी ने लागू किया, मनमोहन सिंह जी ने उनको बढ़ाया, वाजपेयी जी ने बढ़ाया, गुजराल साहब ने बढ़ाया, देवगौड़ा जी ने बढ़ाया, ऐसे लगातार बढ़ते और आज भी सरकार उन्हीं पे काम कर रही। तो जिसकी बुनियाद मनमोहन सिंह जी ने डाली हो, नरसिम्हा राव जी ने डाली हो, राजीव गांधी ने डाली हो, वो जो है डेड इकॉनमी नहीं हो सकती, ये बात बोली गई थी। परंतु विपक्ष के नेता अगर ऐसे वर्ल्ड लीडर साथ एग्री करते कि सर इंडियन इकॉनमी डेड है, उन्होंने बोला था कि मोदी जी की वजह से अडानी और अंबानी के लिए उन्होंने देश, परंतु उन्होंने सहमति दी थी। उनका कहने का मतलब ये था कि डेड इकॉनमी जो है इसलिए है कि यहाँ पे ना रोजगार मिल रहे हैं, लोग करोड़ों लोग बेरोजगार पड़े हैं, महंगाई बहुत है, बुरा हाल है। इसका कहने का आशय ये था।
तो सर जब डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं डेड इकॉनमी उनका दूसरा मतलब है, और जब राहुल गांधी जी बोलते हैं डेड इकॉनमी उनका दूसरा नहीं, मतलब है। राहुल गांधी का एलेबोरेट स्टेटमेंट था, आगे उन्होंने पूरी उसका वो इतना निकाल के वो 2 लाइन पे चले गए। जी सर। तुम्हारा टाइम बाकी है भाई, पूछो ना, उसको दो ना वापस। हाँ हाँ, क्या फर्क है, नर्वस मत हो। तो इसलिए जो है वो और ट्रम्प तो कुछ भी बोल रहे हैं, सुबह से आज कुछ बोलते हैं, कल कुछ बोलते हैं, परसों कुछ भी बोल रहे हैं। तो असली चीज़ सैंक्शंस की है, जो हमारे ऊपर सैंक्शंस हैं उन्हें हमें ये जो टैरिफ है उसको रोकना चाहिए कि जो है अभी 25% लगे, आगे धमकी दिएगी। तो कोई भी देश किससे ट्रेड करेगा उस देश का राइट है। हम रशिया से तेल खरीदे हमारा राइट होना जी चाहिए, सर, उसको जी कोई सर। डिक्टेट नहीं कर सकता। परंतु सर राहुल गांधी जी ने फिर से सदन में कहा नहीं, था राहुल गांधी ने तमाम चीज़ों पे वो जो है सपोर्ट भी किया, चाहे वो अमेरिका की नीतियाँ कुछ भी है उस पर जी सर, उन्होंने बोला विरोध था- उन्होंने किया है, लेकिन उनका भी जो स्टेटमेंट था वो पूरा नहीं देखा गया, और मेरा भी स्टेटमेंट पूरा नहीं देखा गया। वो खाली आजकल मीडिया का जो रहता है ना, ये सब भाई बहन हमारे जो हैं ये कोई भी चीज़ आजकल के एंकर तो कुछ भी उछाल देते एक सेंटेंस, और सोशल मीडिया तो सबका पूछो मत। जी सर। तो आपने भी बोला था कि कमज़ोर स्थिति नहीं बुलाना चाहिए, बट सर अभी 80 करोड़ लोग पीडीएस पर डिपेंडेंट है अकॉर्डिंग टू द सरकार। सर दूसरी बात, अब हमारा मैन्युफैक्चरिंग शेयर ऑफ जीडीपी 14% है, जहाँ 25% होना है। तो आपको नहीं लगता कि हमारी स्थिति अभी बुरी है? जीडीपी 14% का है सर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर शेयर ऑफ जीडीपी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो एमएसएमईज है, सब जगह बड़ी प्रॉब्लम चल रही है। ठीक कह रहे हो तुम, सब जगह जो है बहुत पर हमारी इंडस्ट्री भी परेशानी में है, और बिजनेस परेशानी में, और जीएसटी को लेके भी व्यापारी बहुत तंग रहते हैं, बहुत परेशान रहते हैं। और क्या होता है, जीएसटी का प्रॉब्लम है कि गवर्नमेंट को आपने अगर कोई चीज़ दी तो जिस दिन बिल रेज किया वो जीएसटी चार्ज उसी दिन करते, पेमेंट सरकार से साल भरवा आता, तो क्या फ़ायदा। जी सर। गुड आफ्टरनून सर, मेरा नाम विनायक दीक्षित है। मेरा एक सवाल आपसे ये है सर कि यू आर अ सीनियर कांग्रेस एमपी एंड योर वाइफ ओन्स एंड ऑपरेट्स अ टेलीविजन न्यूज़ चैनल विद इन्फ्लुएंस ओवर पब्लिक ओपिनियन, and your brother-in-law Mr. Ravi Shankar Prasad is a senior leader in the BJP. In a democracy where credibility depends on transparency, neutrality, loyalty, how do you reconcile these three competing rules? And can you genuinely claim to represent the Congress party without bias, ensuring your wife's channel remains free from political influence and still maintain family ties to the BJP without compromising your political stance? Or is this so-called balance nothing more than just a conflict of interest that undermines public trust both in politics and in media? देखो, आपने देखा होगा उस चैनल को जो चलता है तो कोई आज तक किसी ने शिकायत नहीं की जी, किसी पॉलिटिकल पार्टी ने, बस किसी एक ने मिनट में आपको शिकायत। रुकूंगा। अभी आपने बोला मीडिया कुछ भी उछाल देती है, आप वो तो खुद directly जनरल link सारे देंगे। मीडिया के लिए मैं कह रहा हूँ जो इस बयान सारे को- मीडिया में वो भी आता है सर? हाँ, तो उसमें आप ये देखो ना कि आपने अगर देखा होगा और पूछो कि कहीं कोई उसमें आपको किसी पार्टी को शिकायत है, सब पार्टी कहते नहीं, सबसे बिल्कुल न्यूट्रल चैनल और सब जो है सबकी बात दिखाता है। तो अगर वो अपने जिम्मेदारी पे चल रहा है, मैं तो उसमें डायरेक्टर भी नहीं हूँ, कुछ नहीं हूँ, है। और ना आपका वो- लिंकेज है सर, उस लिंक को नकार नहीं सकते। लिंक तो है, पर लिंक वो अलग चला नहीं। अगर उसकी पॉलिसी इंडिपेंडेंट है, न्यूट्रल है, तो हम ये तो कर नहीं सकते कि ताला बंद कर दे, नहीं तुम कुछ नहीं कर सकते, तुम घर में हाउस वाइफ बन के बैठो, हाँ, तुम्हें सर, कुछ वो नहीं करना करना भी- वो चाहिए, करना भी वो नहीं भी चाहिए, नहीं वो करना चाहिए। भी नहीं तो फिर वही बात है ना, कई जगह कई पॉलिटिशियन के बेटे जो है चैनलों में काम कर रहे हैं, जी, हैं, तो वो ब्यूरोक्रेट्स के बेटे काम कर रहे हैं, जजेस के बेटे काम कर रहे हैं। तो जुडिशरी में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया, वो ब्यूरोक्रेट गवर्नमेंट काम में कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। तो कहीं ना कहीं आपको एक जो है ये जो है एक ड्रॉ करनी पड़ेगी लाइन कि हर चीज़ को हर एक से मिक्सअप करके नहीं दे सकते। एज लॉन्ग एज आपकी परफॉर्मेंस, आप जो काम कर रहे हैं वो सही है, उसके लिए तमाम सब देखने वाले हैं। How have you managed it so far? You being a politician in the INC. मैं कोई इंटरफेरेंस करती नहीं, सबको पता है ना। मैं कुछ आगे करता हूं ahead in और the ना- future ऐसा ना अगर कोई रविशंकर- मौका ना आ जाता है रविशंकर जहां आपको प्रसाद- इंटरफेयर करना पड़े, ऐसे मौके बिल्कुल पे? नहीं करता हूं। आप वो जो जर्नलिस्ट आए उनसे पूछ लीजिए, जो पहले रिटायर हुए वो यहाँ भी कई तमाम काम कर रहे हैं, उनसे पूछ लीजिए। जी, शाम को चलिए, आ रहे ये तो होंगे। मीडिया के सवाल पे हो गया। As far as your relations with Mr. Ravi Shankar Prasad is concerned, what do you have to say about that? कल को अगर ऐसी कोई सिचुएशन अराइज करती नहीं, है, वो हमारे रिश्तेदार हैं, जी। लेकिन हम कोई उनकी, वो अपनी पॉलिटिक्स करते हैं, हम अपनी और पॉलिटिक्स सर कर इस रहे हैं। देश के जो वो 140 करोड़ BJP लोग में- हैं उनकी परसेप्शन में अगर आप देखें, वो बीजेपी की कर रहे हैं, हम कांग्रेस में, तो तमाम ऐसी फैमिलीज हैं। आप ये देखो ना कि कल को आप कहने लोगों की वो ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में होते थे, वसुंधरा राजे जो है
उनकी वो उसमें बीजेपी में होती थी। ऐसी बहुत सी फैमिलीज हैं। एक फैमिली का मैं उदाहरण क्या दूँ कि जहाँ अलग अलग है, लक्ष्मण सिंह जी और दिग्विजय सिंह जी के भाई भाई अलग अलग जगह पॉलिटिक्स करते हैं, और मेनका गांधी जी जो है वो बीजेपी के साथ है। सर, मेनका गांधी और नेहरू गांधी फैमिली में रिफ्ट तो काफी विजिबल दिखाई भी देती है। रिश्तेदार तो सब है ना। जी, तो ऐसे वो तो मैं 50 दर्जनों है, मतलब सैकड़ों उदाहरण आपको ऐसे मिल जाएंगे जहाँ एक भाई कहीं है, दूसरा भाई कहीं है ना। तो ये तो है, तो इसमें क्या, तुम्हारा सगा भाई हो सकता है कि किसी दूसरे चैनल में काम कर रहा है नहीं सर, ऐसा अभी तो है कॉम्पिटेंट। उदाहरण में दे रहा हूँ जी 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 कि तमाम लोगों के जो उनका एक भाई दूसरे चैनल में काम कर रहा है, दूसरा जो दूसरे चैनल में कर रहा है, तो क्या एक दूसरे की जासूसी करने यहाँ से खबरें वहाँ भेज नहीं देता सर, क्या? ऐसा तो बिल्कुल फिर वही नहीं है, चाहिए, तो आपको absolutely इतनी फ्रीडम तो देनी पड़ेगी आज के पढ़े लिखे युग में। थैंक यू सो मच सर। Good afternoon, Mr. Shukla. My name is Anhad Nagpal. I'm a student at the British School. And I'd like to begin by saying that you are the face of the UPCA and IPL. And many promising young cricketers without political or financial backing are sidelined at a state level, while those with connections make it through. As a face, what have you actually done to ensure that talent, not money or influence, decides who gets picked? तो शुड आई रिस्पॉन्ड इन हिंदी और इंग्लिश? बिकॉज यूपी वाले भी सुन लें, इसलिए मैं कह रहा हूँ। आप ये बताओ, एक उदाहरण दो कि जो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस और मनी इन्फ्लुएंस से कोई लड़का आया हो, एक नाम बताओ। Arvind Birla is an example. Arvind Birla in the IPL. अरविंद बिरला यूपी में नहीं है, अरविंद बिरला मध्य प्रदेश से खेलते थे, है But he's still a cricket player in India. मध्य प्रदेश से खेलते थे, वो MP CM है मध्य प्रदेश, अरविंद बिरला, और 3 सेंचुरी उसकी रणजी में। बहुत अच्छा प्लेयर था। वो क्यों छोड़ के चला गया क्रिकेट मेरी समझ में नहीं है। वो IPL डिजर्व करता था, ही वॉज अ वेरी गुड क्रिकेटर, उसको वो छोड़ के चला गया। लेकिन वो MP CM, आप UPC की बात कर रहे हैं, जितने प्लेयर यूपी में, आज इंडिया की कोई टीम नहीं बनती जिसमें यूपी से प्लेयर ना हो, हैं। इतने लड़कों का किसी लड़के की कोई सिफारिश नहीं है, चाहे RP सिंह हो, चाहे सुरेश रैना हो, चाहे मोहम्मद कैफ हो, चाहे जो है ये आपके अब के सारे प्लेयर पीयूष चावला हो, या ध्रुव जुरेल हो, या रिंकू सिंह हो। रिंकू सिंह की तो मतलब सिलेंडर ढोते उनके फादर, इतनी गरीबी में वो पला हुआ। इतने गरीब बच्चों को मौका मिला है, कुछ ना किसी का पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस, ना एक का मनी इन्फ्लुएंस। रिंकू सिंह पैसा दे सकते हैं, ध्रुव जुरेल पैसा दे सकता है। उनके इंटरव्यू तो देखो कितनी तारीफ करते हैं यूपी क्रिकेट एसोसिएशन की कि उनको मौका मिला। इसलिए ये सिर्फ अखबारी सवाल है, जो ऐसे जिनके बच्चे सेलेक्ट नहीं हो तो इस तरह का आरोप लगाते रहते हैं। ठीक है, हाँ। And another point is that there are repeated reports of trials in these state cricket associations being influenced by bribes, agents, and favoritism. Do you think that as a political administrator like yourself... If you are saying about all the state associations, Yeah. so everywhere, I mean, everywhere trials are taking place. Somewhere some allegations are being, other allegations are being made. That's why Supreme Court had appointed, a Supreme Court appointed committee had made this provision of ombudsman, where a retired Supreme Court judge or Chief Justice of High Court judge is there. People can complain and find out. Yeah. So, I mean, this is a general complaint. Yeah. I mean, this is a general complaint because you know what's happening. In most of the states, 15 or 20 players are to be picked up. And thousands of players, they come to give trial. So suppose if 4,000 players are coming to give trial, out of which only 15 or 20 will be selected. So 3,985 players will be complaining, their parents will be complaining. True. But there have been instances in which there has been injustice within the industry. There was the if there is injustice, they can complain to ombudsman. True. I mean, there was one instance in which an audio clip surfaced in which someone purposely demanded 6 lakhs as a trial hosting fee to allow under 19 players in Uttar Pradesh to participate in matches. It went viral online, and UPCA took no action. Those are fake allegations that been laid. After that, nothing. It was referred to the ombudsman, and everywhere they could have gone to the court. But this was nothing. an audio that went viral online. Audios can be made. True. But audio there was is no very easy. So investigation that audio was is not followed by... considered evidence. Anybody, I told you, na, कि people they immediately if 3,985 players are not selected, out of which anybody can complain anything against selectors. That's the problem. But selectors, what can they do? Don't you think that the UPCA should have launched an investigation to find out about these allegations? Whenever these things come, we launch investigation.
and nothing has come out so far. शुक्ला जी, टाइम की वजह से पिछली बारी आपका जो आखिरी उत्तर था वो रह गया था। मेरा प्रश्न आपके लिए ये था, सबके लिए, कि अमित शाह जी के लड़के क्रिकेट बोर्ड के अंदर बड़े ऊंचे पद पे हैं और बीजेपी कहती है वो परिवारवाद के खिलाफ हैं। तो आज आप क्या कह सकते हैं कि जय शाह जी को इतना ऊंचा पद नहीं देना चाहिए? जब आप बीजेपी के परिवार को उदाहरण देते हैं तो वो जो है वो उसमें नहीं आता, क्योंकि वो क्रिकेट में है। अगर वो एमपी का चुनाव वहाँ से लड़े, एमएलए का चुनाव लड़े, तो फिर वो उसमें आता। लेकिन बीजेपी को मैं इसलिए कह रहा हूँ ये अधिकार नहीं पूछने का, क्योंकि उनके यहाँ के तमाम परिवारों के बच्चे राजनीति में जी। आप देखिए कल्याण सिंह जी का जो है बेटा एमपी है और ग्रैंडसन मिनिस्टर है यूपी में, हैं? इसी तरह से सिंधिया परिवार के सारे लोग हैं। इसी तरह से उन्होंने जितने महाराष्ट्र में उनके परिवार के तमाम लोगों के परिवार को हैं, रमन सिंह जी का बेटा भी यहाँ पे एमपी रहा, तो उनके यहाँ भी इतने परिवारों के लोग हैं जो पॉलिटिक्स में आऊँ। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सब लोग ये आरोप लगाएं, कम से कम बीजेपी को आरोप नहीं लगाना चाहिए। लेकिन आप इसकी तुलना क्रिकेट में या बिजनेस या और कहीं कोई है, पब्लिक ऑफिस तो होता है, तमाम भारतीय वासियों को क्रिकेट का बहुत शौक है। ये पॉलिटिक्स है। कल को वो जो है बैडमिंटन नेशन में तो वहां भी रोक किसी के लिए होगी, तो वो बात नहीं है। जिस दिन वो यहाँ एमपी एमएलए बनने के आएंगे उस दिन एलिगेशन लगा सकते हैं। हाउ इज ही द बेस्ट पॉसिबल फिट आउट ऑफ एवरीवन इन इंडिया? ही हैपेंस टू बी द होम मिनिस्टर्स सन। इज दिस नॉट रॉन्ग? देखो, मैं आपको पहले इसके पर जवाब पहले भी दे चुका हूँ ना कि वहाँ एक प्रोसेस होता है जी, स्टेट ओशन का, और वहाँ तो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं उस प्रोसेस को, और सब उसका वहाँ से लोग आते हैं, उस लिहाज से लोग आते हैं। तो वो प्रोसेस आपको जब पड़ता, लोगों को वोट देने होते, वोट से इलेक्ट होके हो सकता। तो आप बार बार वहीं घूम घूम के जा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूँ कि हमने तुम्हें 20 उदाहरण दिए है ना। मैं आपके उत्तर से संतुष्ट हूँ। तो हम उस जगह उदाहरण दिए जहाँ लोग उनके पॉलिटिशियन हैं और फिर वो जब आरोप दूसरी पार्टी पर लगाते हैं कि वहाँ परिवारवाद, उसकी आलोचना होनी चाहिए। लेकिन राजनीति के अलावा कोई कौन कहाँ है उससे हमें मतलब आपको मतलब नहीं है। ठीक है, मैं समझता हूँ आपकी बात। शुक्ला जी, लॉ कमीशन की जो 275th रिपोर्ट थी, उन्होंने साफ रेकमेंड किया था कि बीसीसीआई, क्योंकि वो पब्लिक बॉडी है, तमाम भारतवासी देखते हैं क्रिकेट, वो आरटीआई के अंदर आने चाहिए। आप कांग्रेस के बहुत सालों से सपोर्ट आप उन कांग्रेस को देते हैं और कांग्रेस भी आरटीआई को अपने दिल की बिल समझ के पास करवाया था। हाँ जी, तो आरटीआई और कांग्रेस एक चीज़ हो गई, बीसीसीआई एक चीज़ हो गई। आप कांग्रेस के सपोर्टर हैं, कांग्रेस के नेता हैं जो बीसीसीआई में हैं, आप बीसीसीआई को पुश क्यों नहीं करते कि आरटीआई वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट हो? देखो, आरटीआई के जो रूल्स है तो कांग्रेस गवर्नमेंट ही लाई थी आरटीआई, जी, जिससे लोगों को सूचना का अधिकार मिला था। उसके जो प्रोविजन है, उस प्रोविजन में जो है उस आधार पे तो काम होगा जी। तो जब गवर्नमेंट से कोई ग्रांट लेती नहीं है, हाँ जी, गवर्नमेंट से कोई फेवर लेती नहीं है जी, तो आरटीआई को उस प्रोविजन में बीसीसीआई कैसे आएगी? और अभी स्पोर्ट्स बिल आया है, हाँ, उसमें क्लियरली पार्लियामेंट के दोनों सेशन ने पास किया, उसमें भी है। तो जो स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट है, जो किसी को डॉक्यूमेंट चाहिए, कागजात चाहिए या कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए, वो सब देंगे। लेकिन वो उस तरह की चीज़ें हैं जहाँ पे हम कोई फाइनेंशियल कंसिडरेशन है ही नहीं बीसीसीआई का, उनके बारे में आरटीआई के प्रश्नों का उसमें एग्जाम्पशन उन सारे स्पोर्ट्स ऑर्गेनाइजेशन के लिए जो गवर्नमेंट से पैसा नहीं लेते। मैं समझता हूँ, पर अगर हम इसे देखें इस दायरे से कि पूरी पब्लिक क्रिकेट में इतनी इंटरेस्टेड है, और मैं समझता हूँ फाइनेंस की ज़रूरत नहीं होती, पर अगर पूरी पब्लिक क्रिकेट में इंटरेस्टेड है, आपको नहीं लगता कि पब्लिक का राइट है जानना कि बोर्ड में क्या क्या चलता है? लोग तो बहुत चीज में इंटरेस्ट हो सकते हैं, फिल्मों में बहुत अच्छे इंटरेस्ट होते हैं, तो फिल्मों पे भी आरटीआई लगा दो। नहीं, पर वो गवर्नमेंट का नहीं तो किससे क्या, ये गवर्नमेंट का क्या जी, ये भी तो गवर्नमेंट का नहीं है। So, you've been a 3-time parliamentarian. You've previously represented Maharashtra and Uttar Pradesh also, I think. And this is your third term. Fourth term as a Chhattisgarh MP of the Rajya Sabha. In the last year, we've seen you meet everyone from Rishi Sunak, Sachin Tendulkar, Virat Kohli, Prince Edward, King Charles, Narayan Murthy. But I want to honestly ask you, in the last 3 years since you've been representing Chhattisgarh,
How many times have you visited Chhattisgarh? How many times have you held meetings with the other 15 members from the Lok Sabha and Rajya Sabha of Chhattisgarh discussing the concerns of the people? How many times have you met union ministers raising the issues of the people of Chhattisgarh? How many times have you sent written questions to treasury benches pressing them on issues related to Chhattisgarh? Now, we know that your party has a history of being very closely, like literally going into the constituencies and being closely connected to the people. I was reading a story earlier that former Prime Minister Srimati Indira Gandhi, she used to write letters asking about the asthma of people in her constituency of Raebareli. But to that extent, how would you rate your own performance? Have you made a century or are you out on the first ball? Well, I've been to Chhattisgarh several times. And Last 3 years. every session in last 3 years, and every session I raise lot many issues about Chhattisgarh, which are being widely publicized in the local newspapers there. In parliament questions, special mentions, 0 hours, I keep raising about Chhattisgarh. Then I met several ministers also. Which ministers, sir? Raising the issues of Kaun se minister, kaun se like issue? Home Minister I met and I told him that the funds which was, which earlier they used to release for Naxalite area, that should continue. Even if the situation has improved, now those funds should be utilized for the development of that area, which was a Naxalite affected area. So that was one meeting you can remember. So then that's one meeting. Okay. On Railway Minister also, I met Railway Minister also for Chhattisgarh. To discuss I what? met Civil Aviation Minister But what did you also. discuss Some with the Railway Minister? more airports will be launched. They are in government. I've attended 2 meetings with the Chief Minister of Chhattisgarh also. One in Raipur, another here when he had invited all the MPs to discuss the issues of Chhattisgarh. So that is going on continuously. Whatever I can do for Chhattisgarh, I am doing. Okay, sir. In the UK, a country which you visit regularly for BCCI-related matters, there's a rule that members of parliament have to be in touch with their constituencies. They have to visit almost on a weekly basis. They have to hold meetings with schools, universities, local businesses, NGOs, keep in touch and be their voice in parliament. But the general perception that even I was looking through your Instagram, we see you mostly in ivory towers hobnobbing with celebrities. We don't really see you on the ground with the people. So how do you think you can counter that perception of yourself? No, I think it's a misconception. It's not true. You can see me, but you love to see me with Sachin Tendulkar, Shah Rukh Khan and other personalities. But don't you think your constituents would like to see you there? When I go for political rallies or meeting people or go to Chhattisgarh, I was in Raipur, last month. Yeah. Did you see those photographs? Because you don't want to see them. So problem Sir, it's is not that with I don't you. want to see Problem them. is with me. It's not that You I don't only- want to see them. you know, It's whenever just that those you- pictures are so few and far beyond that they're very hard to find. You only see those pictures where some celebrity, some important person is there. If otherwise, there's no significance of other Sir, pictures. पिछले 6 If महीने I'm- का आपका इंस्टाग्राम छान मारा, कुछ हाँ, मिला तो नहीं। 6 मिनट हाँ इंस्टाग्राम जी। अगर छा मारा तो उसमें और भी चीजें मिलेंगी, लेकिन आपकी दिलचस्पी सिर्फ उसी में हाँ, है Scars कि of कहाँ कोई 1947 important King Charles आदमी के साथ है। देखा था है ना? Thank you. हेलो अगेन राजीव जी, आपने अभी कहा था कि इंटरनेशनल कमिटमेंट्स के कारण हम एशिया कप जाना ही पड़ेगा, हम मना नहीं कह सकते, बट मेरे ख्याल से 2023 में भी तो हमने मना किया था पाकिस्तान जाने के लिए एशिया कप के लिए, और हमारे हाँ, तो matches वो श्रीलंका उसमें में है हुए। जो पॉलिसी गवर्नमेंट की आई उसमें बड़ा क्लियर है कि हम एक दूसरे का नहीं जाएंगे, तो वो पहले से पॉलिसी है, वो चल रही, तो हम वहाँ हम जाते हैं, वो जरूर है हमारे यहाँ। अगर आपने देखा होगा कि चैम्पियंस ट्रॉफी में वहाँ पे विश्व कप में लोग यहाँ पे आए हुए थे, है ना, वो हमारे यहाँ आए और हमारे यहाँ एक बायलैटरल टूर पे वो लोग आए, हम नहीं गए। तो जो है हमारी पॉलिसी ऐसी है कि हम नहीं वहाँ पे जा रहे हैं, तो ये तो बड़ा क्लियर है। बट एशिया कप में जब हम 2023 में नहीं गए थे तो इस बार हम क्यों जा रहे हैं, बल्कि वी हैव मोर रीजन नॉट टू गो इन दिस एशिया कप। नहीं, एशिया कप में उसके पहले एशिया कप में हम थे ना, 2023 में हमने मना किया था। पाकिस्तान हम नहीं गए थे। जी, और हमारे लेकिन मैचेस दुबई में श्रीलंका तो नहीं मैच तो हुए थे, एशिया कप में हम पार्टिसिपेट किए थे। तो उसी तरह से हम थर्ड सॉइल पे खेलेंगे, है ना, जो भी थर्ड सॉइल होगी हम थर्ड सॉइल पे खेलेंगे, और जो है एक दूसरे का बायलैटरल टूर नहीं होंगे, एक दूसरे का नहीं जाएंगे, हैं,
और तो ये तो- मल्टी जो नेशन टूर्नामेंट उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो ये तो गवर्नमेंट का फैसला हुआ है, बट आपको लगता है कि हमको यही पाकिस्तान- पॉलिसी है जो गवर्नमेंट ने पॉलिसी बनाई है। जो भी हम इसमें जब जो भी हमारे इंटरनेशनल टूर्स होते हैं हम गवर्नमेंट की परमिशन लेते हैं और जो भी गवर्नमेंट कहती है उस आधार पे चलते हैं। तो जो भी गवर्नमेंत का फैसला होता है हम उसको मानते हैं। जी राजू जी, मेरा एक और सवाल था कि जो डिस्ट्रिक्ट और जोनल लेवल्स पे क्रिकेट के ट्रायल कंडक्ट हुए जाते हैं उनमें काफ़ी हद तक हमें दिखाई देता है कि फेक एज सर्टिफिकेट आ जाते हैं, डोपिंग आ जाती है और वो मतलब बाद में जाके पकड़े जाते हैं। वो ग्रास रूट लेवल पे जो ट्रायल्स इनिशियली होते हैं उनसे तो आगे बढ़ जाते हैं एंड द डिजर्विंग कैंडिडेट्स आर लेफ्ट बिहाइंड। तो कुछ प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं होने चाहिए? नहीं, ये आपका सवाल बहुत अच्छा है। एज रिलेटेड प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए हमने बोन टेस्ट का वो रखा है और रेप्यूटेड हॉस्पिटल से कराते हैं। कई बार उनमें ऐसा आता है कि लड़के की एज कम है लेकिन ज़्यादा आ जाती है, जो बहुत एक्सरसाइज करते हैं, बोन उसकी है, तो वो प्रॉब्लम है एज रिलेटेड। तो काफ़ी कुछ कोशिश बीसीसीआई कर रही कि कैसे उसको कितना सॉर्ट आउट करें। कई पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं कि हमारी शादी बाद में हुई और उम्र उसमें इतनी आ रही है। तो कुछ बच्चों के साथ ही होता है एज रिलेटेड प्रॉब्लम, उसको जितनी हम साइंटिफिक तरीके से सॉल्व कर सकते हैं सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्रिवेंटिव मेजर्स डिस्ट्रिक्ट लेवल के पहले आने चाहिए कि जब कोई ऑलरेडी डिस्ट्रिक्ट लेवल शुरू होता है, फिर जब अंडर 16 अंडर 19 में होते हैं तो ये समस्या आती है। अंडर 16 अंडर 19 तक, 16 में खास तौर से प्रॉब्लम आती है। और राजीव जी, मेरा एक और सवाल था शशि थरूर के बारे में। वो जब कांग्रेस प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस के लिए खड़े हुए थे तो उनको 1000 वोट से ज़्यादा मिले थे। वो 2009 से एमपी हैं केरला में। तो when he is openly expressing displeasure with the party, why has the party leadership not acknowledged his concerns? And in fact, the KPCC, the Kerala Pradesh Congress Committee, has called for a boycott as well in the. ये जो है मीडिया वगैरह में पढ़ के आप लोग सवाल करते हो, असलियत क्या है? कंसर्न उनकी कहाँ एड्रेस नहीं की गई? ही वॉज मेड CWC मेंबर, जो हाईएस्ट बॉडी है वहाँ पर रखी अपनी बात। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के मेंबर है वो, हैं वहाँ पर अपनी बात जो सबसे बड़ा एपेक्स फोरम है उसमें है वो। तो कौन कंसर्न है? सब कंसर्न के एड्रेस करते हैं। तो आपको गलत लगता है कि वो CWC में नहीं कहे कि वो मीडिया में खुलेआम कहते हैं कि नहीं, मीडिया में भी ऐसा क्या कह रहे हैं? उन्होंने एक दो बातें ऐसी कही हैं जिसका उन्होंने स्पष्टीकरण भी दिया है। उन्होंने कहा है कि आई हैव ऑप्शंस, और वो ही कीप्स हिंटिंग कि वो कांग्रेस पार्टी को शायद नहीं, छोड़ मुझे दें नहीं future लगता कि ऐसा कोई बात उन्होंने कही है। पार्लियामेंट में अभी जब ये था जो वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन की जो कैंडिडेट था मीटिंग, उसमें भी थे, सब जगह थे। तो वो तो जो है मतलब वो अपनी बात एक रखते हैं, लेकिन पार्टी ने उनको फोरम दिया हो जहाँ अपनी बात रखे, हमेशा कह सकते हैं। तो जो आपका सवाल है कि उनकी कंसर्न्स पे ध्यान नहीं दे रहे, वो सही नहीं है। उनको पूरा मौका मिला हुआ है। जी शुक्ला जी, थैंक यू सो मच। फिर से नमस्ते। मुझे आपको एक सवाल था आपकी जो आपने 6 साल के लिए यूपी को रिप्रेजेंट किया था 2000 से 2006 में। आपकी काफ़ी इन्फ्लुएंस है बीसीसीआई में एंड आप राज्यसभा में यूपी को रिप्रेजेंट करते थे, पर वहाँ पे कोई मेजर क्रिकेट इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कोई हैज़न्ट बीन वेरी कंपेरेबल टू अदर पॉलिटिकली कनेक्टेड रीजन्स। जैसे कि 2023 वर्ल्ड कप में बीसीसीआई ने 50 करोड़ 10 वेन्यू में एलोकेट किए थे। ईडन गार्डन्स 127 करोड़, हैदराबाद 117 करोड़ एट्सेट्रा। जो कानपुर में जहाँ पैदा भी हुए थे, ग्रीन पार्क के करंट यूजेबल कैपेसिटी सिर्फ 18,500 सीट्स है, जो पहले 30,000 सीट्स होता था ड्यू टू सेफ्टी कंसर्न्स। While states like Gujarat have built the 130,000 capacity Narendra Modi Stadium, your UPCA is now seeking 250 crores for renovations. So, to boost cricket in your hometown, what has the BCCI been doing? देखिए, कानपुर का जो ग्रीन पार्क स्टेडियम वो गवर्नमेंट का स्टेडियम है। हाँ जी। तो वो वहाँ पे गवर्नमेंट ही सारा कंस्ट्रक्शन और गवर्नमेंट सीट अगर बढ़ानी है तो गवर्नमेंट कर सकती, इंक्लोजर बढ़ाने तो गवर्नमेंट कर सकती, गवर्नमेंट का स्टेडियम है वहाँ पे। हमने उनके साथ एक जो है ये करने के बाद कानपुर में बहुत मैचेस कराए और हम 2 सीजन IPL भी ले गए। यहाँ तक कि टीम कुक को भी मैं कानपुर लेके गया था। अच्छा। एक IPL का मैच दिखाने के लिए। तो इस तरह से कानपुर को काफ़ी मैंने मैचेस दिलाने की कोशिश की। वहाँ 2-3 समस्याएं। एक तो ये 1-2 इनक्लोजर ऐसे हैं जो बहुत अभी काफ़ी वो हो गए हैं पुराने। हाँ जी, तो उससे उनमें सीटिंग कैपेसिटी रिड्यूस की है। अब यूपी गवर्नमेंट ने प्लान दिया है कि कुछ इंक्लूडर्स को बढ़ा रहे हैं, तो जैसे बन जाता है। दूसरे बहुत पुराना मतलब ये 75-80 साल से वहाँ मैचेस हो रहे हैं। सब 5 जो मेन टेस्ट सेंटर होते तो उसमें ग्रीन पार्क होता था। तो अब नए ढंग से उसमें जो पानी जो है कैसे जो है
मतलब जल्दी सोख हो जाए नई टेक्नोलॉजी से, उसके लिए ग्राउंड में भी चेंजेस का काम चल रहा है। तो मीनवाइल जो है लखनऊ में जब स्टेडियम है उसके साथ भी हमने एग्रीमेंट किया, और बनारस में तीसरा स्टेडियम बना रहे हैं जो कि अगले मतलब 6-8 महीने में तैयार हो जाएगा। तो हमारे पास 3 तो ये बिल्कुल स्टेडियम कानपुर का है, उसमें भी पूरा ध्यान देके उसमें रेनोवेशन का काम चल रहा है। अभी इंडिया ए और ऑस्ट्रेलिया ए का मैच का भी हम कानपुर में करने जा रहे हैं वहाँ पे। तो इसलिए नहीं, कानपुर को पूरे सारे मैचेस दिए गए, लेकिन कानपुर में 2 समस्याएं आती जिनको लेके बीसीसीआई और आईसीसी को आपत्ति होती है। वो जब कोई इंटरनेशनल मैच दिए जाते हैं तो एक तो होटल उतने 5 स्टार हैं जितने कमरे चाहिए उनको, एक ही सिर्फ है, तो वो एक प्रॉब्लम आती है वहाँ पे। दूसरे इंटरनेशनल एयरपोर्ट उनको चाहिए जहाँ पे जो है हमेशा से लैंडिंग और टेकअप, वहाँ एयरफोर्स का एयरपोर्ट है वो 5 बजे बंद हो जाता है। तो ये बहुत बड़ी टीम कुकी जब आए तो कानपुर में लैंड कराया था, 5 बजे के पहले आ गए थे वो, लेकिन इसके बाद उनको लखनऊ ड्राइव ग्राउंड करके जाना पड़ा जब वापस वो अमेरिका जा रहे थे। तो ये समस्या है। हाँ जी, राजनीति की हमने काफ़ी बात कर लिया। मैं आपको एक क्रिकेट का सवाल पूछना चाहता हूँ। अभी क्या था इसके पहले वाला सवाल? मुझे क्रिकेट के सिलेक्शन के बारे में पूछना था। तो अभी जो एशिया कप 2025 की सिलेक्शंस आई हैं, डिस्पाइट लीडिंग द पंजाब किंग्स टू द IPL फाइनल 2025 एंड विनिंग द IPL द ईयर बिफोर एज कैप्टन इन बोथ ईयर्स, स्कोरिंग ओवर 600 runs at a strike rate of 175 in T20s and displaying mature leadership quantities, Shreyas Iyer was dropped without any clear reason. Former greats like AB de Villiers and Mohammad Azharuddin have openly questioned this decision, and selectors have cited team balance or off-field factors, but no transparent justification has been given. Shouldn't there be greater accountability on these actions? Well, these decisions are taken by the selectors, by the selection committee. But you still represent the BCCI. No, they're taken by selection committee. This is the responsibility of the selectors. So when they have taken a decision, they must have given a thought to it. In a broader perspective, they would have taken this decision. So I can't comment on that. But Shreyas Iyer is a good player. Good player will definitely get an opportunity. सर आगे बढ़ने से पहले स्पोर्ट्स का मेरा एक बहुत जल्दी से सवाल था कि आप एज अ स्पोर्टिंग एडमिनिस्ट्रेटर अभी हॉकी की कंपटीशन में जिसके अंदर पाकिस्तान को निमंत्रण दिया गया था इंडिया में आकर खेलने का, परंतु पाकिस्तान ने सिक्योरिटी रीजन साइड कर कैंसिल किया, उस पर आपकी क्या राय है? नहीं, वो तो कोई कंट्री अगर अपनी टीम नहीं भेजना चाहती तो ना भेजे। परंतु सर उन्हें बुलाने के पीछे मेरा सवाल था कि उन्हें बुलाने तो हॉकी फेडरेशन ने बुलाया होगा, तो अगर नहीं आना चाहते नहीं। आप तो गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई ना सारी उसके लिए, खाली क्रिकेट के लिए नहीं है, सारी उसके लिए आई है कि हम बायलैटरल न टूर करेंगे न खेलेंगे, तो बात खत्म है वहीं से। ठीक है सर, आगे बढ़ते हुए प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट जो अभी साइन हुआ था पार्लियामेंट में, उससे काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट आया ड्रीम 11 जो इंडियन क्रिकेट टीम का टाइटल स्पॉन्सर है। हाँ वो तो है, क्योंकि वो अभी इन सब कंपनी का स्पॉन्सर से बंद हो जाएगा, तो उससे हमें नुकसान है, तो हम उसके अल्टरनेटिव जो स्पॉन्सर्स हैं वो देख रहे हैं। परंतु सर आप पर्सनली ऐसे कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट, क्योंकि आप इतने रिस्पेक्टेड ऑपोजिशन पार्लियामेंट लीडर भी हैं और साथ ही साथ BCCI के वाइस प्रेसिडेंट हैं, तो ऐसे कन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट आप कैसे मैनेज करते हैं? नहीं, कॉन्फ्लिक्ट इसमें क्या है सर, आप दोनों तरफ से आपको अपना बयान देना होगा कि दोनों तरफ को रखते हुए। पॉलिटिक्स और क्रिकेट में क्या, दोनों में क्या प्रॉब्लम है? कहीं कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं है। जी, पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल अपना काम कर रही है, क्रिकेट का काम है जिसमें पार्टी लाइंस पे कुछ होता नहीं। ओके सर, आगे बढ़ते हुए आपसे एक और सवाल था कि आप पहले अखिल भारतीय लोकतांत्रिक कांग्रेस के लीडर हुआ करते थे, जो कि एक NDA अलाइन पार्टी थी। 2003 में आपने स्विच किया कांग्रेस में। तो सर पिछले 25 साल में जब से आप राज्यसभा के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रह चुके हैं, आपकी आइडियोलॉजी पे क्या क्या इम्पैक्ट आया और वो कैसे बदली है पिछले 25 साल? आइडियोलॉजी से लोकतांत्रिक कांग्रेस की जो आइडियोलॉजी कांग्रेस से निकला उदाड़ा था जी, उनकी वही आइडियोलॉजी थी जो कांग्रेस की आज। हाँ, तो और आपने देखा हो कि उस समय जो NDA में जो घटक दल थे जी, उसमें ममता बनर्जी भी थी, फारूक अब्दुल्ला भी थे, और ये नीतीश कुमार जी, तमाम लोग थे, और ये शरद यादव भी थे जी, है ना। तो वो तो उस तरह के जो उस आइडियोलॉजी के लोग, वो सब लोग भी उसमें थे, और वाजपेयी जी ने उन सबको लिया था जी, उस समय उन आइडियोलॉजी के लोगों को। तो सर बीजेपी ने अब जिन लोगों को पीछे छोड़ दिया है अब सरकार में आते हुए, तो उस पर आपका कोई कमेंट है कि कैसे उनकी आइडियोलॉजी बदली है जिसके अलॉन्ग आप नहीं अलाइन करते? किनको छोड़ दिया? बीजेपी ने, जैसे आपने जिन लीडर्स का मेंशन दिया। अब वो उनसे इस समय नहीं उनका बना, तो ये अलग अलग बीजेपी के नेतृत्व की बात। उस समय वाजपेयी जी ने एक बड़ा व्यापक सोच रखा था और बहुत लार्ज हार्टेड होके उन्होंने इन सबको अपने साथ लिया था। करीब 18-20 पार्टी लेके वाजपेयी जी ने सरकार बनाई थी, बहुत लोग थे उसमें। सर तो आप
वाजपेयी जी की पॉलिटिक्स मोदी जी की पॉलिटिक्स के कंपैरिजन में ज़्यादा फेवरेबल समझते पार्टी हैं? के नेतृत्व होता है अपने समय समय से वो निर्णय लेता है। हाँ। मौजूदा नेतृत्व का एक निर्णय है, पहले एक नेतृत्व एक निर्णय था, तो ये तो उनके ऊपर है कि कौन पार्टी क्या नेतृत्व क्या करता है। परंतु आपकी पर्सनल आइडियोलॉजी पिछले 25 सालों में नहीं, हम तो कांग्रेस आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं। जी सर, तो कांग्रेस पार्टी के अंदर ही रहते रहते ऑपोजिशन पहले गवर्नमेंट से लेकर ऑपोजिशन तक क्या ट्रांजिशन रहा आपके लिए पर्सनली, और उससे आपका कोई इम्पैक्ट आया है आपके डिसीजन मेकिंग पे? नहीं, डिसीजन मेकिंग पे क्यों इम्पैक्ट आएगा जब आप कुछ मूल्यों पे, कुछ विचारधारा पे, कुछ आपके कुछ थॉट्स हैं उन पे जब आप जो है लगातार अड़िग हैं, उसी के हिसाब से चल रहे हैं, तो कभी कोई दिक्कत आएगी नहीं। जी थैंक यू, धन्यवाद। मिस्टर शुक्ला, आपने भी बात की कि आप कांग्रेस आइडियोलॉजी से जुड़े हुए हैं, बट देखकर तो लगता है कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी हर नई पीढ़ी, हर नई गांधी पीढ़ी के साथ डगमगा जाती है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने सदियों से बीजेपी पे ये एक्यूजेशन किया है, ये उन्हें इस बात से इल्ज़ाम लगाया है कि बीजेपी कम्युनल है, धर्म के नाम पे हिंसा करती है और समाज में आतंक फैलाती है। और कांग्रेस पार्टी ने जब राम मंदिर का इनॉग्रेशन हुआ उसे भी बहुत अच्छे से क्रिटिसाइज़ किया था और बोला था कि ये आरएसएस का एक स्टंट है, ये सर्कस चला रही बीजेपी वगैरह वगैरह। तो मेरा आपसे प्रश्न है, जब राजीव गांधी जी ने, जब शाहबानू केस हुआ था और उन्हें अक्यूज़ किया गया था कि वो अपीजमेंट पॉलिटिक्स के चक्कर में उन्होंने गलत साइड लिया और उन्होंने पार्लियामेंट में मुस्लिम विमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986 पास कर दिया, जिसने सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन जो शाहबानू के फेवर में था उसे कम्प्लीटली नलिफाई कर दिया और बोला कि डिवोर्स मुस्लिम विमेन विल ओनली हैव द राइट टू मेंटेनेंस फॉर द पीरियड ऑफ इद्दत, जो 3 महीने लगभग होती है। और फिर उन्होंने जो हिंदू समुदाय था, जो उनसे गुस्सा हो गया था इसके बाद, उन्हें इंप्रेस करने के लिए इतने साल से डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी जो बाबरी मस्जिद है उसे खुलवा कर राम लल्ला की आरती लाइव दूरदर्शन पे दिखाई थी। तो कांग्रेस जो इतने साल से बोल रही है कि राम मंदिर का मुद्दा जो था बीजेपी का किया जा रहा है, वो तो शायद गलत है। और मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कांग्रेस की आइडियोलॉजी डगमगा रही है क्योंकि उसके बाद राहुल गांधी जी ने रिसेंटली अभी बोला था कि लॉर्ड राम एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, और 2007 में यूपीए के एरा के समय एक एफिडेविट साइन किया गया था सुप्रीम कोर्ट में, जिसने कहा था कि राम के एग्जिस्टेंस पे सवाल उठाया था सीधा। तो एक जगह पिताजी कहते हैं कि राम मंदिर का दरवाज़ा खोल के आप लाइव आरती दिखाइए, उसके बाद उनके सुपुत्र कहते हैं कि भगवान राम तो है ही नहीं। तो कांग्रेस की आइडियोलॉजी है क्या धर्म को लेकर? और देखिए, राहुल गांधी कभी नहीं कहा कि भगवान राम नहीं है। जितनी पूजा पाठ कांग्रेसी करते हैं, उन्हें माइथोलॉजिकल कहा था। देखो, जितनी पूजा पाठ कांग्रेसी करते हैं, ये भाजपा वाले कभी नहीं करते। ये कैमरा लगा के पूजा करते हैं, इन्हें लोगों को दिखाना है पूजा की घर में और उसका फोटो डाल दिया ताकि लोग जाने, तो ये वोट के लिए पूजा करते हैं। तो क्या राजीव गांधी जी ने नहीं किया था वोट के लिए? पूरे मुझे तो जवाब भी देने, इतना लंबा सवाल पूछा। कांग्रेसी अपनी आस्था के लिए करते हैं घर के, तो वो कोई बात नहीं। राम मंदिर पे भी ये कहीं नहीं कहा था कि राम मंदिर का विरोध कर। सबसे पहले जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया, पहला बयान कांग्रेस की वर्किंग कमेटी ने दिया कि हम वहाँ भव्य मंदिर निर्माण के पक्ष में हैं। लेकिन इन्होंने उस दिन जो ये आपत्ति थी जिस दिन था कि इन्होंने उसको शो बना दिया अपनी पार्टी का। शंकराचार्यों से होना चाहिए था प्राण प्रतिष्ठा, शंकराचार्यों तक ने विरोध किया था कि भाई इसको पॉलिटिकल पार्टी का शो मत बनाओ, इसमें सबको शामिल करो, सबको ही होना चाहिए। ये थोड़ा ना कि ये तो जो धर्म के जिन लोगों को अधिकार है जो है उन लोगों को आगे रखना चाहिए। शंकराचार्यों ने उसका विरोध नहीं किया था। शंकराचार्य ने कहा था कि मंदिर निर्माण में जो शास्त्रों में लिखा है कि मंदिर का निर्माण किस तरह से किया जाएगा, उसका विरोध किया। नहीं, शंकराचार्य मंदिर के निर्माण का नहीं। शंकराचार्य ने विरोध किया था कि एक तो अभी अधूरा मंदिर है, उन्होंने कहा था। दूसरों ने कहा था प्राण प्रतिष्ठा वगैरह काम हम लोगों का, हमें करना चाहिए, हम वहाँ पर शंकराचार्यों को बुला के उनसे करना चाहिए। राम मंदिर की जो गवर्निंग बॉडी थी वो सरकार की नहीं थी, वो एक इंडिविजुअल बॉडी थी जिन्होंने लोगों के पैसों से वो मंदिर बनाया। लेकिन उसमें कौन लोग थे? सर कौन लोग थे? पर सरकारी पैसा नहीं था, वही तो लोगों ने वोट दिया, लोगों ने पैसे दिए थे, वो सब हिंदू परिषद से जुड़े लोग थे, उसमें कोई शंकराचार्य नहीं थे, सरकारी बॉडी नहीं थी। नहीं, उस कहने को सरकारी बॉडी नहीं थी, लेकिन लोग उसके अंदर कौन भरे हुए थे? उन्होंने अपने लोग सब रख दिए थे। कोई शंकराचार्य या बड़े बड़े लोग या बड़े बड़े जो थे प्रतिष्ठित जिन्हें उसका रामचरितमानस का ज्ञान, वो कोई नहीं थे उसमें, सब उन्होंने अपने लोग रख दिए थे। एनीवे चलो कोई नहीं। और रामभद्राचार्य जी जो सरकारी नहीं है, रामभद्राचार्य जी जो रामभद्राचार्य जी उन्होंने इस काम के लिए मोदी गवर्नमेंट की प्रशंसा भी की थी। रामभद्राचार्य से करा देते ना उसका प्राण प्रतिष्ठा, उनसे भी तो नहीं कराई ना।
ओके सर, थैंक यू। तो वो पॉलिटिकल शो हो गया सिर्फ इतना, किसी को राम मंदिर से विरोध नहीं, हम सब तो जाते हैं वहाँ। Hello, sir, again. Sir, मेरे पास आपके लिए एक follow-up question है. So you mentioned and you were right in pointing out that the BCCI has launched the Women's Premier League, for example. But sir, in a country like ours, there are structural issues. Do you think those are being accounted for? Women cricketers in India continue to face inadequate infrastructure. They continue to face limited media opportunity for their sport to be recognized as something real, as opposed to something tokenistic, for example. Women, in the cultural narrative of a sport such as cricket, which is incredibly important to our national identity, are still not taken seriously. So, sir, given this reality, what concrete roadmap have you and the BCCI laid out to ensure that these gaps are filled in the coming years, so that women cricketers are actually built from the ground up, as opposed to more elite level opportunities like the Women's Premier League, for example? Well, you know what we were supposed to do, we have done. Like we had about 2 decades back, we had adopted women cricket. Earlier, women cricket was not part of BCCI, but we adopted it. We started financially supporting it, and now we have, you know, made the provisions to keep the salary at par and remuneration at the par with women. Equal pay many opportunities women are there. tournaments are being organized. Teams are being sent internationally also. Everything is doing. But the only thing which we need is support of women of this country. They don't go to watch their matches. Sir, but in tier 3 cities... Listen. Stadiums are vacant. Why the women of this country, they don't go and watch their games? Sir, because if the media is not covering it, The if the media is covering- BCCI doesn't prioritize it as a step forward, then for the girls in tier 3 BCCI has cities... prioritized. Matches are being telecast, everything is being done. So, but there are how do they two, play 3 matches cricket? in Delhi League also. Did you go to watch it? So, women-specific Problem, equipment... this is the problem. Unless you get the audience, you also want to watch the male matches. So, but isn't it the if Virat Kohli is responsibility... playing, we all will go. So, correct, है ना? but isn't it the If responsibility Deepti Sharma is of playing, the we will not BCCI? go. Fair enough, but isn't that the exact problem So that the don't BCCI blame should BCCI for this. make up for? So don't blame BCCI is providing an opportunity. We have launched WPL. How many people go to watch So, between WPL? the opportunity and the people that are meant to access it, this gap of the No, cultural you shift mean, towards I appreciating know, but women's what do you cricket. mean by opportunity and access? So, We in have- tier 3 cities, currently they are not able to access the Women's Premier League. They don't have proper equipment to play as women because everything is catered towards men and male athletes, for example. every you know, women wing is attached to a state association. Whatever facilities are being provided to male cricket, in same way the same association providing the facility to women cricket also. It's not that. Same facilities are both, which are being shared by both. So that's Sure, not sir. an issue. The only thing is that spectators should go to watch women cricket, which So, they are but not going. If they are not incentivized to do it because it is not being prioritized at the same Incentivized to level. whom? दर्शकों को पैसा Sir, दें लाने के लिए. अंदर से problem नहीं है कि nobody wants to watch women's No, why cricket. they don't? It's that they're not being If you pushed don't towards want to doing it. watch, So I want to watch women's cricket. It's just not as mainstream or as broadcasted. you sir. problem in the Currently- broadcasters, they are telecasting. All WPL match are being telecast, but why the TRP is low? So, but the problem cannot be that there is just an inherent lack of wanting to watch the sport. If there That's is the a problem. push towards You know, women participating in it, they will want to. Most of the people, they want to watch male cricket. That's the problem. Sir, it is because women do not feel like they are welcome in the sport. No, in the women first are place. playing very well. Of course, they are. They sir. defeated Exactly. England team, Australian team. Our girls are Of course, doing sir. really well. But I mean, people should appreciate, should go and support them in the ground, Exactly. in the So stadiums. we are in agreement, sir. It's just that girls should be pushed towards participating in the first place. They are being, ample of opportunities have been provided. So, but they don't Girls- feel included. No. Who told you? This it's a made-up question. It's not true. सबको तो मिल रहा है ना, हमारे पास तो कमी है कि और लड़कियां आए. जी सर. सर आपने अभी कहा था कि ये राम जन्मभूमि ट्रस्ट जो है कहने के लिए सरकारी बॉडी है पर ऐसे नहीं है. जब हम बीसीसीआई को बोलते हैं कि सरकारी बॉडी नहीं थी वो. आपने बोला कहने के लिए कि सरकार के बहुत लोग उसमें हैं. आपने अभी कहा था कि जो बॉडी है बहुत है. नहीं, वैसे- विश्व हिंदू परिषद के लोग और जी भाजपा के सर. लोग थे. हाँ. जी सर आपने कहने के लिए तो है सर. वैसे ही सर जब लोग बोलते हैं बीसीसीआई कहने के लिए सर इंडियन क्रिकेट टीम, विमेंस इंडियन क्रिकेट टीम, सर दे आर सेंडिंग द कंट्री इटसेल्फ सर. तो कहने के लिए वो भी सरकारी नहीं है सर. कौन? सर बीसीसीआई सर. नहीं आप बोले सर. कि प्राइवेट बॉडी है सर, जैसे आपने बोला आरटीआई हाँ. एक्ट, पर आप कहने के लिए भी नहीं, वो सरकारी बॉडी नहीं है सर. सरकारी बॉडी नहीं है.
ठीक है सर। हाँ, सर दूसरा तो सरकारी क्वेश्चन, बॉडी कहाँ से हो जाएगी? ठीक सर, दूसरा उसमें तमाम नीचे का काम सारे क्रिकेटर्स देखते हैं। सौरव गंगुली सरकारी है? जी सर। हैं? सर, जी सर, नहीं है आप ना? बोल रहे थे पहले हैं? कुछ। जी तो सर। ऐसे तमाम लोग उसमें जो है जो सरकारी नहीं है, मैं भी सरकारी नहीं हूँ। सर दूसरा सवाल था सर, अभी हम देखते हैं कि ऑपोजिशन राज्यसभा में बहुत वॉकआउट स्टेज करती है सर। जब अभी इनएक्शन होता है SIR के बारे में या कोई और फ्रीक्वेंट हाइक इन प्राइसेस, सर ऑपोजिशन वॉकआउट कर देती है। आपने अभी ध्यान दिया था कि ऑपोजिशन के लिए ये सदन ही उनका अधिकार है, वहीं वो बोल सकते हैं जो बोल सकते हैं। तो सर आप, बट ऑपोजिशन गवर्नमेंट बोलती है कि आपने 70 घंटे सर जो प्रोडक्टिव टाइम है डिबेट के लिए वो वेस्ट हो गए, और अरुण जेटली जी ने कहा था कि डिसरप्शन इज़ अ बैड प्रेसिडेंट फॉर डेमोक्रेसी। आप क्या सर उसके साथ अग्री करते हैं? देखिए, अरुण जेटली ने तो ये कहा था कि डिसरप्शन इज़ ए पार्ट ऑफ पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, क्योंकि उन दिनों कांग्रेस गवर्नमेंट में थी और बीजेपी अपोजिशन में थी, तो डिसरप्शन करते थे। तो जब उनका क्रिटिसिज्म हुआ तो उन्होंने कहा कि डिसरप्टिंग पार्लियामेंट इज ऑल्सो ए पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी, ये उन्होंने कहा था। जो अब आज हम लोग कोट करते हैं तो बीजेपी उस पर ऑब्जेक्शन करती है। तो क्या है ना, मैं तो पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर हूँ। सदन चलाने की जिम्मेदारी सरकार की होती है, ट्रेजरी बेंचेस की। उनका काम है कि भाई सदन चलाए। अपोजिशन के पास है क्या? सिर्फ एक ही चीज़ तो है, पार्लियामेंट जहाँ अपनी बात रख सकते हैं, या विधानसभा जहाँ अपनी बात। उसके अलावा उनके पास न सरकार है, न दफ्तर है, न अफसर है, कुछ और तो है नहीं। वहाँ भी अगर आप डिबेट का मौका नहीं दोगे, वहाँ भी अपोजिशन को अगर बोलने का मौका नहीं दोगे, अपोजिशन क्या कहता है, इस चीज़ पर डिबेट करा दो। डिबेट आप 2-4 घंटे करा दो, इसके बाद अपने बिल पास करो। तो जब सरकार अड़ जाती कि नहीं इस विषय में डिबेट नहीं करो, हम ये डिबेट, तो वहाँ झगड़ा होता है। जब वहाँ झगड़ा होता है तो वही हंगामा करना पड़ता है। जी सर, जब आप मिनिस्टर स्टेट थे फॉर पार्लियामेंट्री अफेयर्स सर, 21 अगस्त 2012 आपने कुरियन जी को बोला था, जब बीजेपी अलेजेड कोल एलिगेशन की, आप हाउस अजर्न कर दीजिए। आपने माइक में बोला था, जब वो भी सर वैसे आप बोले उनको भी बात करना था सर, उनको इशू करते सर। कुछ और इशू था तो उसमें सबकी सहमति थी, विपक्ष की सबकी। कोई और काम था, कोई और मीटिंग थी, तो उसमें था कि हाउस को जन करना है। तो चलता रहता, बहुत छोटी सी बात है वो, उसमें ऐसा कोई बंदा। अभी भी सलाह दी जाती है कि सब इस समय यहाँ पे ये मीटिंग तो ये कर दो, तो ये कोई नई बात नहीं। उसको बेवजह सोशल मीडिया पे इशू बनाया हुआ है। जी सर, पर तभी भी अभी आप बोल रहे कि विपक्ष के पास जो पार्लियामेंट्री मिनिस्टर अपना सुझाव तो देता है ना चेयर को। जी सर, जो लीड अपोजिशन के लोग वो भी सुझाव चेयर को देते हैं। जो हम मतलब उस समय हम पार्लियामेंट्री मिनिस्टर, तो हमारे भी सुझाव तो देते थे, तो सुझाव में देते हैं अगर कोई चीज हो कि अभी इस पे ऐसे कर सकते हैं, कैसे रिक्वेस्ट तो सब करते हैं। तो रिक्वेस्ट उस समय हमने कुरियन साहब से की थी। सर, डज इट नॉट टेक अवे फ्रॉम द टाइम ऑफ द पीपल हु वांट टू टॉक अबाउट दिस इशू? सर 70 आवर्स 80 आवर्स ऐसे जाते जाए तो फिर क्या होगा सदन को? सदन में क्या होता है, डिस्कशन। तो जब डिस्कशन की परमिशन नहीं मिलती है, सपोज कि एक चीज़ पे डिस्कशन मांगा है ना, अब डिस्कशन की परमिशन ही नहीं दे रही गवर्नमेंट, तैयार नहीं हो रही, डिस्कशन नहीं हो रहा, चेयर से परमिशन नहीं मिल रही, तो फिर विरोध करते हैं लोग, इसलिए डिस्ट्रप्शन होता है। हेलो अगेन सर, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन सर क्रिकेट रिलेटेड है थोड़ा सा। सो यू वर द चेयरमैन ऑफ द IPL बैक इन 2013. यू रिजाइंड आफ्टर वन ऑफ द बिगेस्ट स्पॉट फिक्सिंग scandals rocked the entire cricketing sport. And your resignation came after the arrests on June 1st, 2013, after S. Sreesanth, Ajit Chandela, Ankit Chavan and CSK official Gurunath Mayappan were arrested. You had resigned immediately after that. उसके 2 साल बाद सर सुप्रीम कोर्ट अपॉइंटेड लोधा प्रोसेस से there was the entire thing was investigated and action was taken, whereas it should have been the BCCI who should have initiated that entire process. So your resignation, even though आपने as a sign of punishment एक resignation दिया था, but जो reality में perception में जो दिख रहा था वो ऐसा था कि जैसे आपने पल्ला झाड़ लिया है। तो what do you have to say about that? नहीं, उन दोनों जो माहौल था, जो हुआ था और ये पूरा सब चल रहा था, तो कई लोगों ने रिज़ाइन किया कि भाई एक जो है इसका ये हो जाए, मतलब एक जिम्मेदारी फिक्स हो जाए और इसकी पूरी जांच हो जाए। तो कई लोगों ने रिज़ाइन किया था क्योंकि वो इशू उठा था, आपको जैसा पता है कि, और जिम्मेदारी लेना एकदम सही है सर, बट बात यहाँ तक क्यों गई दैट द कोर्ट हैड टू अल्टीमेटली स्टेप इन? द BCCI शुड हैव बीन एट द फोरफ्रंट ऑफ ऑल ऑफ दिस। देखिए, इट वाज योर रिस्पांसिबिलिटी। सुनिए, तो आपने उसकी पूरा केस का नहीं अध्ययन किया। BCCI कोर्ट गई थी, पहले BCCI ने 2 जजों की कमेटी बनाई थी। उन जजों की कमेटी ने जो रिकमेंडेशन दी थी उसमें बॉम्बे हाई कोर्ट ने उसको कहा कि भाई ये कमेटी जो है रिकमेंडेशन नहीं दे सकती क्योंकि इसमें एक IPL गवर्निंग काउंसिल का मेंबर भी होना चाहिए।
तो उस बॉम्बे हाई कोर्ट के ऑर्डर को चैलेंज करने के लिए बीसीसीआई सुप्रीम कोर्ट में गई थी। तो ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट ने बीसीसीआई को सुप्रीम कोर्ट जाने की जरूरत क्यों पड़ी सर? यू हैव द पावर्स इन योर हैंड। नहीं यू कुड हैव टेकन एक्शन बैक देन। नहीं, उसमें क्या ना, पावर्स के हिसाब से तो 2 मेंबर कमेटी बनाई गई थी, तो 2 रिटायर्ड जजों की, है ना, जिन्होंने अपना एक जो है एक अपनी फाइंडिंग दी थी। उसके बाद उस फाइंडिंग को जो है मुंबई हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दिया। तो मुंबई हाई कोर्ट के उस फैसले के बाद जो, और उन्होंने टेक्निकल ग्राउंड पर रिजेक्ट किया, फाइंडिंग को नहीं रिजेक्ट नहीं किया था। उन्होंने कहा था कि इसको जो ये 2 मेंबर जजेस की कमेटी, इसमें एक आईपीएल गवर्निंग काउंसिल का मेंबर होना चाहिए। तो उसके बाद जो है बीसीसीआई वहाँ पे कोर्ट में, वो बॉम्बे हाई कोर्ट के उसके खिलाफ गई थी कि साहब ये जो है इनकी रिपोर्ट को मान लिया जाए, जो 2 जजेस की, बस उतना ही था। Do you think that just by resigning your responsibility was over? नहीं, हम सब लोग थे उस कमेटी मीटिंग में, लेकिन उस समय सब एक उससे दे रहे थे कि भाई हम जो है सब, कई लोगों ने त्याग पत्र दिए थे कि हम जो है ये चाहते हैं कि ये सब चीज़ों की निष्पक्ष जांच हो, तो कई लोगों ने त्याग पत्र दिए थे। चलिए सर, टाइम भी थोड़ा कम बचा, सो लेट्स लाइटन द मूड अ बिट। इतनी कमांडिंग स्क्रीन प्रेजेंस है सर आपकी, यू आर फ्रेंड्स विद एवरीबडी, मतलब ये कहा जाता है सोशल मीडिया पे कि मिस्टर राजीव शुक्ला कैन बी सीन एनीवेयर एंड एवरीवेयर। सो अपार्ट फ्रॉम पॉलिटिक्स, क्रिकेट को भी अगर आप हटा दें, कहीं और से ऑफर्स आए किसी और प्रोफेशन में एंटर करने के लिए, शाहरुख खान इतने अच्छे दोस्त हैं आपके, कभी एक्टिंग का कुछ सोचा है सर? नहीं, मैं तो एक्टिंग के ऑफर आए, लेकिन शाहरुख ने मुझे मना किया कि राजीव जी आपका काम नहीं है, आप अपना काम करिए, ये मुझे करने दो। So you were basically advised against going into the film industry. हाँ, ये तो आते थे, उसमें क्या कोई कहता कुछ, तो हमने कभी उस तरफ कोई दिलचस्पी भी नहीं, लिखने में दिलचस्पी है तो अपनी किताबें लिख रहे हैं, बस उसी में चल रहा है। Anything that we can see ahead in the future on the bookshelves? अब अभी तो ये जो स्कार्स ऑफ 1947 चल ही रहा है, एक और नावल है, एक और लिख रहे हैं। So you're an avid writer, you write a lot. I read a lot. But you know, now that's good to I'll know. increase that. Thank you very much. Good afternoon, Mr. Shukla. I want to touch back on the point of corruption within the industry. We talked about the audio clip that had surfaced a few years ago in which under-19 players underwent a sort of injustice in which a family had paid 6 lakhs in order to make their relatives participate in matches. But these are baseless allegations. Sure. I don't want to respond on that. They'll all have been investigated and nothing was found. Sure. So I don't want to increase it unnecessarily because these are fake allegations, vague allegations. Definitely. There is no evidence to suggest that they have got any substance. You are saying hard evidence, but the Supreme Court judge investigated and he didn't find anything. So the Times of India and the Indian Express is saying that. Then they had run the story. After that, they had corrected. Sure. The clean sheet had been published. Sure, but I mean, a UP cricketer has come out and said that. So cricketers, I've told you, several cricketers, if they are not selected, they can make any allegation against anyone. Sure. When the allegation was investigated, there was nothing. True. And the complainant himself had come before the panel and said, that it's a fake complaint. Okay. Moving on. I also want to touch about the point in which talented players from rural areas sometimes don't get noticed because scouting is concentrated within cities. Without networks or money to attend multiple trials, many are left out. What is your opinion on that? Scouting? Scouting for talented players occurs mostly in urban centers, in cities like Delhi, Bombay. And people sometimes without money or a network to attend those trials. You are more countrywide? True, within India. Within India. No, there are district associations also. In number of states, they conduct trials. Then at the division level also trial takes place. Then in certain states, there are open trials also. Okay. So anybody can walk in and give trials. Yeah. So different states have got different, provisions. Sure. So, and then some states have made some talent research teams also who keep on visiting and finding out the talent. Interesting. But still, India has got huge talent, so obviously certain people are left out. Also, I want to touch upon Rajya Sabha. I mean, you yourself are a member. Originally, you're from UP,
but you've represented Maharashtra in the past. And this goes as a tradition for multiple members in the Rajya Sabha. What is your opinion on people from different backgrounds representing different states within India? You know, this issue had been settled by Supreme Court of India. Kuldeep Nayyar had gone to Supreme Court. Supreme Court had said that like Lok Sabha, End with that question. I think your time is Lok up. Sabha, he should be voter in India and he can come from any state. Okay, great. That was such a great, interesting clash of ideas, and thank you, Rajiv ji, for taking all of this so sportingly. What has been your biggest takeaway? Biggest takeaway, all of this? Huh? No, they ask very good questions, and a lot many things have been raised by them. They ask, and they have done their research very well, I can say. And they are promising youth. They're promising you can see them in politics soon. Yeah. Maybe if right anybody now. wants to come into politics, they are most welcome. Right. Thank you so much, Rajiv ji. Thank you so much for doing this. Thank you so much to our students for making this debate one for the books. We'll see you soon with another guest on Take That.